So yes, so far we have covered my first step and we did this simple adding card and the Tinder cards thing was covered in the previous week. Today we will see this to-do list and apart from that we will take a small brief about Truth and Dare game itself that I will give you a breakdown that how you could build that and we will see that in next session hopefully tomorrow. And so talking about now, today our goal is to study about the themes, the structuring of the project, padding and margin, and basic components such as expandable and flexible. Then I will give you the code. The code of this to-do list is uploaded on my GitHub, but we will go through that whole code and try to understand that हर एक component कैसे place किया गया है. And then regarding this random function and truth and dare game, I will ask you to ignore right now because मैं तुम्हें बताऊंगा that how they are being implemented together. So coming back to the themes, you know, इसके लिए rather than showing this PPT, यहाँ पे कुछ points है, we will come to this later, but I will take you to my VS Code screen and show you something interesting there. So yes, you all remember this being our first application, right? Drop a message जिसका relevance है इस application के साथ. They have seen this application. We began with this application on our day one. So यहाँ पे मैंने कहा था कि इसमें बहुत सारे complex elements हैं that we need to ignore right now. But क्योंकि अब हम काफी कुछ level तक progress कर चुके हैं Flutter में, we need to see some particular things. And the first one out of these is this theme and theme data. So apparently there are multiple functions in it, but to keep the simplicity minimum and just to give you an overview ताकि तुम और इसको अपने personal level पे explore कर सके, I will tell you more about this primary swatch function. And अगर तुम यहाँ पे comments को पढ़ोगे ना, then there is this option try changing the primary swatch color below to colors.green and then invoke hot reload. So पहले हम यही करके देखते हैं, हम देखते हैं क्या changes आते हैं. Then I will tell you that what this theme data does and how you can make it in your application to modify and process your application much smoother. And उसका UI का तुम्हें बजाय कि हर एक कंपोनेंट के लिए कलर्स देने की बजाय तुम एक थीम डिफाइन कर सकते हो जो सारे एप्लीकेशन में फॉलो होगी. सो राइट नाउ ये ब्लू कलर में है एंड एज दिस आई डू दिस टू द ग्रीन. तो जैसे मैं इसको ग्रीन में करूंगा, यू विल सी दिस चेंज टू ग्रीन एंड नॉट जस्ट दिस आल्सो चेंज टू ग्रीन. बेसिकली अगर तुम्हें बिल्कुल ही लाइक लिंग्विस्टिकली अगर तुम सोचो, देन थीम इज बेसिकली दैट हाउ द कलर्स आर प्रेजेंटेड इन आवर फ्लटर एप्लीकेशन. एंड इसीलिए थीम डाटा काफी एसेंशियल हो जाता है इन टेलिंग दिस होल कंपोनेंट्स की कैसे थीम वर्क करेगी. एंड आई विल टेक यू थ्रू डाउन दिस 3 स्टेप्स जिसकी मदद से तुम कहीं पे भी अपने प्रोजेक्ट में किसी भी प्रकार का थीम यूज कर सकते हो. सो इफ यू विल सी हियर समथिंग, द प्राइमरी स्वेच थिंग इज क्वाइट ऑब्वियस दैट आई मेंशन, इससे मेन थीम सेट हो जाती है एंड इट इज लाइक अ टेम्पलेट जिसमें कलर्स पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज होते हैं. दैट कुड बी द बैकग्राउंड एंड फोरग्राउंड कलर बोथ. बट नाउ टॉकिंग अबाउट द टेक्स्ट थीम, यहाँ पे हम टेक्स्ट को एक बार डिफाइन कर सकते हैं दैट बजाय कि यहाँ जाने के वी विल सी इन द कोड इटसेल्फ. बट हियर आर द 3 स्टेप्स टू यूज इट. फर्स्ट वन, क्रिएट अ ऐप थीम इन द मटेरियल ऐप. दिस इज द वे टू क्रिएट दैट इन मटेरियल ऐप एंड उसको कस्टमाइज करना है डाटा को एंड देन एक्सटेंड टू द चाइल्ड. दिस बेसिकली टेल्स कि जब हम अपने प्रोजेक्ट में थीम को यूज करना चाहते हैं तो उसमें कहाँ कैसे इन्वोक करेंगे. सो आई जस्ट कम टू दिस प्रोजेक्ट अगेन एंड जैसे कि हम हमेशा करते हैं, वी विल रिमूव दिस unnecessary chunk of code and create a stateless digit with the name my app, wrap it with the material and इसके अंदर हम देंगे होम, अपना होम पेज. Sounds very much familiar, right? I'll just go here, open a new folder, home.dart. अब इसके अंदर हमारा कोड चलेगा. First of the main thing is importing the packages, material.dart. Now a stateless widget with the name homepage. Then अब इसके अंदर just click on this bulb and import की ऑप्शन आ जानी चाहिए. Okay, name is right. ग्रेट. सो अब हमने बेसिक इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर दिया. अब हमें यहाँ पे बिल्कुल प्लेन टेम्पलेट दिख जाएगा. नाउ वी विल ट्राई क्रिएटिंग द थीम फॉर दिस प्रोजेक्ट. सो ऑल यू नीड टू डू इज टू चेक द थीम इटसेल्फ. लेट्स क्रिएट अ वेरी बेसिक स्कैफोल्ड जिसके अंदर हम एक ऐप आर बना लेते हैं. सो बाय डिफॉल्ट जैसे कि तुम देख सकते हैं जो प्राइमरी स्वेच का कलर होता है, इट इज ऑलवेज दिस ब्लू कलर. बट वी कुड एक्सपेरिमेंट विद इट. हम यहाँ पे थीम प्रॉपर्टी इंपोर्ट करेंगे एंड थीम प्रॉपर्टी के अंदर जो पैरामीटर्स लेते हैं, अ वेरी गुड ट्रिक इज टू जस्ट लुक एट दिस कि ये क्या प्रॉपर्टी ले रही है थीम डाटा. सो अपने आप से भी तुम थीम डाटा डालोगे तो ये उठा लेगा. अब इसके अंदर तुम देख सकते हो तो मल्टीपल प्रॉपर्टीज, एक्सेंट कलर, ब्राइटनेस,
app bar theme and multiple things. But our main focus is on the primary Swatch thing because primary Swatch तुम्हें allow करता है पूरा रेडीमेड टेम्पलेट का जिसके अंदर कलर्स ऑटोमेटिकली मैनेज है एंड इनफैक्ट जो हम टू डू लिस्ट बनाएंगे उसमें भी मैंने से प्राइमरी स्वैच को यूज किया है बिकॉज उससे एक हैसल खत्म हो जाती है इन डिफाइनिंग की कौन सा कलर ज्यादा डार्क रखना है कौन सा ज्यादा लाइट. सो आई जस्ट टेक इट येलो एंड अब इसके अंदर हम चाहते हैं कि हम अपने टेक्स्ट की थीम को डिफाइन कर सके. सो यहाँ पे तुम इसे रीलोड होकर देख रहे हो यहाँ पे ऐप बार के ऊपर आएगा द थीम. तो हम चाहते हैं कि उस टेक्स्ट का भी कलर चेंज हो जाए और अगर हम बॉडी के अंदर भी कोई टेक्स्ट डालें तो वो दोनों के अंदर सेम थीम इंप्लीमेंट हो. तो पहले मैं बॉडी बना लूं थोड़ी सी इसकी. बॉडी के अंदर लेट्स मेक अ कंटेनर और अदर I will tell you interesting method like always जो भी तुम widget यूज करना चाहते हो just make it as it is like यहाँ पे मैं चाहता हूँ hello. अब rather than building a container this is a very good practice because इससे होता है कि the columns का hassle खत्म हो जाता है. तो मैं इसको column के साथ wrap करना चाहता हूँ. I will just use wrap with column. अगर मैं ऐसा नहीं करता तो स्पेशली फॉर द न्यू प्रोग्रामर्स हु आर जस्ट इनटू द प्रोग्रामिंग उनके लिए ब्रैकेट्स वगैरह सब हैंडल करने में दिक्कत हो जाती है एंड दैट इज व्हाई जस्ट ऐड दैट टेक्स्ट विजेट और जिससे भी तुम रैप करना चाहते हो जस्ट क्लिक ऑन दैट एंड रैप विद दैट. तो हमने हेलो लिख दिया. अब लेट्स मेक अ वन मोर ताकि मैं तुम्हें डिफरेंस समझा सकूं कि इसके ऊपर बैकग्राउंड के ऊपर कैसा डिफरेंस आता है. सो अब मैं तुम्हें एक और इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूँ. तो मैं बॉडी में आया अभी मैं स्कैफोल्ड के अंदर इसको बैकग्राउंड कलर दूंगा. सो हम फर्स्ट स्टेप तो कर चुके हैं क्रिएट ऐप थीम एंड मटेरियल है. हम उसका डाटा भी कस्टमाइज कर चुके हैं जब हमने उसे येलो कलर दे दिया यहाँ पे. बट अब हम चाहते हैं इसको क्लास में एक्सटेंड करवाना. तो ये हमारा विजेट है और इसके अंदर हमें एक्सटेंड कराना है. तो हमने डालना थीम डॉट ऑफ कंटेक्स्ट इसने अपने आप ले लिया. उसके बाद जैसे तुम डॉट लगाओगे बैकग्राउंड कलर बस तुम्हें इतना करना है एंड जस्ट सी अ स्मॉल थिंग हैपनिंग है. See this? तो बेसिकली इसने क्या किया इसने कहा कि जो हमारी थीम जिसको हमने एक्सटेंड करवाया था इसमें उसके कंटेक्स्ट में जाओ और उसमें जो बैकग्राउंड कलर डिफाइंड है उसको उठा लो. अब बैकग्राउंड कलर किसमें डिफाइन था इस प्राइमरी स्वैच फंक्शन के अंदर ऑलरेडी डिफाइन है कि कौन से कलर के साथ कौन सा मैच होगा. अगर तुम इसके बारे में और इंटरेस्ट से पढ़ना चाहते हो यू कुड रीड द डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इट और यहाँ पे ये सारा मेंशन है कि कौन सा कलर किस कलर के साथ मैच करता है. एंड अगर मैं यहाँ पे अब रेड कर दूं सी दिस. तो बेसिकली तुम्हें एक पर्टिकुलर कलर का कंपोनेंट चेंज नहीं करना पड़ा. इनफैक्ट उसने खुद हैंडल कर दिया कि कौन सी चीज कैसे मैनेज होगी. अब इसमें टेक्स्ट थीम डाटा के अंदर और पर्टिकुलर चीजें हम डाल सकते हैं बट वी विल लुक एट दिस टेक्स्ट टेक्स्ट थीम. अब टेक्स्ट थीम के अंदर भी विजेट क्या होगा टेक्स्ट थीम. तो अब हम टेक्स्ट थीम के अंदर आएंगे या हमें खुद ही सजेस्ट करने लगे कुछ ऑप्शंस बॉडी लार्ज बॉडी मीडियम बॉडी टेक्स्ट वन. सो बेसिकली ये बताता है कि हम अपने पेज को ना जब फिग्मा पे क्रिएट करते हैं अगर तुमने यूआई कहीं पे भी बनाया हो यू कुड लेबल देम कि ये मेरी हेडलाइन वन होगी जैसे थीम है यहाँ पे दिस कुड बी आवर हेडलाइन वन एंड द टेक्स्ट कुड बी दैट पर्टिकुलर हेडलाइन. सो हमें करना क्या है हमें इसको डिफाइन करना है टेक्स्ट स्टाइल. और टेक्स्ट स्टाइल प्रॉपर्टी हम ऑलरेडी देख चुके हैं. जस्ट लेट मी नो तुम सब अवेयर हो ना टेक्स्ट स्टाइल प्रॉपर्टी में हमने उसके थोड़े से फंक्शनैलिटीज देखी थी कि टेक्स्ट स्टाइल में हम कैसे टेक्स्ट को साइज बड़ा कर सकते हैं छोटा कर सकते हैं. जस्ट टेल मी even if not you could just let me know. I'll add multiple features here ताकि थोड़ा वो एक प्रैक्टिस हो जाए. तो यहाँ पे हमें कुछ नहीं देना टेक्स्ट स्टाइल प्रॉपर्टी में जाना है एंड तुम्हें खुद ही ऑटो सजेस्ट कर देगा कि क्या क्या चीजें हो सकती हैं. ऑल द थिंग्स आर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी. फॉन्ट साइज हम डाल देते हैं इसमें सपोज 25. अब होगा क्या हमारे जितना भी है इसमें पूरे प्रोजेक्ट में जहां कहीं भी टेक्स्ट स्टाइल को हम यूज करेंगे तो वहां पे उसका फॉन्ट साइज चेंज हो जाएगा बट वो डायरेक्टली नहीं होगा कि हमने यहाँ पे डाल दिया हो जाएगा. जैसा कि द थर्ड स्टेप इज कि हमें चाइल्ड क्लास में एक्सटेंड करवाना पड़ेगा. सो हमें वो डिफाइन करना पड़ेगा इन द सेम मैनर जैसे हमने अभी किया. अभी के लिए तुम देख सकते हो कलर टेक्स्ट इज सेम बट अगर मैं अपने ऐप बार में आऊं यहाँ पे जैसे मैं टेक्स्ट थीम लिखता हूँ देखो यहाँ पे ऑलरेडी प्रॉपर्टी आ गई बट वी नीड टू यूज इट इन द स्टाइल प्रॉपर्टी राइट. तो हम स्टाइल प्रॉपर्टी में जाएंगे. अब हमने यहाँ पे इसका टेक्स्ट का थीम सारा डिफाइन कर रखा है और हमें यहाँ पे फिर टेक्स्ट स्टाइल पर्टिकुलर इसके लिए बनाने की जरूरत नहीं है. ऑल वी नीड टू दिस थीम डॉट ऑफ कंटेक्स्ट एंड हमने किसके लिए बनाया था वो हेडलाइन के लिए. तो वी विल जस्ट राइट द टेक्स्ट थीम डॉट हेडलाइन. ऐसा लिखते ही तुम देखना यहाँ पे द ऐप बार साइज है. और अगर यहाँ पे मैं इस प्रॉपर्टी को फिर से यूज करूं अपने नीचे वाले में जाके सो आई जस्ट कॉपी दिस लाइन पेस्ट इट हियर एंड यू विल सी. सो मेक सेंस कर रहा है कि कैसे थीम्स वर्क करती है एप्लीकेशन में एंड कितनी यूजफुल हो सकती हैं अगर एक बार में सारा डाटा डिफाइन कर लिया. बेसिकली इट इज सॉर्ट ऑफ वी आर क्रिएटिंग अ फंक्शन जिसको हम एक बार पैरामीटर्स पास कर रहे हैं वो थ्रू आउट द प्रोग्राम हैंडल कर रहे हैं. एंड दिस इज नॉट जस्ट इट. अगर तुम यहाँ पे और प्रॉपर्टी स्टडी करोगे तो यहाँ पे डार्क थीम करके एक प्रॉपर्टी है थीम डाटा में एंड मल्टीपल प्रॉपर्टीज सच वो तुम अपने प्रोजेक्ट को अगर किसी को डार्क थीम पसंद है तो वो डार्क थीम रख सकता है लाइट थीम पसंद है तो लाइट. एंड आई विल लिंक यू अ वीडियो इन टुडेस लेक्चर जब मैं असाइनमेंट दूंगा तब मैं तुम्हें एक वीडियो लिंक कर दूंगा. वहां पे तुम डार्क थीम और लाइट थीम के बीच में टॉगल करना सीख सकते हो जो कि तुम्हारे प्रोजेक्ट में काफी हेल्पफुल होगा. 2-4 लाइन का कोड होगा एंड दैट वुड मेक सेंस इफ यहाँ तक तुम्हें सब समझ आ गया. जस्ट लेट मी नो आर द थिंग्स क्लियर एवरीवन.
ओके, ग्रेट ग्रेट। सो दिस वाज अ सॉर्ट ऑफ इंट्रोडक्शन टू थीम्स। और टेक्निकली तो मैं बताऊं, अगर इससे ज्यादा तुम डिटेल में जाना चाहते हो तो तुम जा सकते हो, बट टेक्निकली इतना ही यूज होता है थीम हमारे एप्लीकेशन में, ताकि हम उसको एक पर्टिकुलर कलर दे सकें और उसके टेक्स्ट के एलिमेंट्स को डिफाइन कर सकें, और वो दोनों चीजें इस पर्टिकुलर 2 लाइनों से ही हो जाती है। एंड सो मूविंग फॉरवर्ड, यहाँ पे मैंने लिखा है एडवाइजेबल बट नॉट मैंडेटरी, इट इज द प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर। तो अगर तुमने, मैंने जो रेफरेंस डाला है, अगर तुम वहां पे देख सकते हो तो वहां पे मैंने डाल रखा है प्रॉपर प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर, कि जैसे मैंने बताया था यूटिल्स फाइल्स को मैं कहाँ यूज करता हूँ और पेजेस को मैं कैसे अरेंज करता हूँ, एसेट्स को कैसे। सो दिस इज माय पर्सनल अप्रोच टू दिस। सो मैंने एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया था फॉर अ क्लाइंट, एंड देयर आई यूज दिस लाइब्रेरी फोल्डर के साथ सब रेलेवेंट है। सो वहां पे लॉगिन पेजेस को मैंने अलग कर दिया, एंड द इंटरनल पेजेस आर लिंक्ड इंटरनली, एंड द यूटिल्स फाइल कंटेन की एक ऐसा पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ कोड जिसको हम बार बार यूज करेंगे, एंड द मेन डॉट डाट फाइल इज केप्ट अलोन। ये पूरे प्रोजेक्ट के फोल्डर से अलग पड़ी होती है, बिकॉज यहाँ पे हम कोई कोड का काम नहीं करते इन पर्टिकुलर, इट जस्ट इज यूज टू क्रिएट द राउट्स, and the asset folder contain all the images, but इसके apart from that you could create a fonts folder too, जिससे तुम अपने font को implement कर सकते हो, and the way assets are implemented, images are implemented, the fonts are implemented in the same way। अगर तुम यहाँ पे pub spec yml फाइल में जाओगे, तो जहां तुम assets को uncomment कर सकते हो, वहां पे उसके नीचे बिल्कुल प्रॉपर्टी होती है फॉन्ट्स की, तो ऐसे तुम फॉन्ट्स की फैमिली को भी डिफाइन कर सकते हो, अपने खुद के फॉन्ट्स क्रिएट करके उनको यूज कर सकते हो ऐसे फोल्डर बना के। एंड अगेन आई से इट इज एडवाइजेबल बट नॉट मैंडेटरी, क्योंकि जब तुम किसी बड़े क्लाइंट को अगर प्रोजेक्ट सबमिट कर रहे हो, देन यू नीड टू फॉलो दिस स्ट्रक्चर, ताकि वो प्रोजेक्ट में लेआउट अच्छे से बैठ सके। एंड हियर इज दिस वेरी इंटरेस्टिंग वे टू डू सो। एक होता है फीचर फर्स्ट एंड लेयर फर्स्ट। फीचर फर्स्ट बेसिकली डज इज कि तुम एप्लीकेशन के जहां जहां पे ऑन प्रेस वाले फंक्शन वगैरह सब चल रहे हैं, तुम उनको इंक्लूड कर दो और उनके अंदर यूआई एलिमेंट्स डालो। बट द अदर वे अराउंड इज दैट यू क्रिएट द यूआई एलिमेंट्स और उनके अंदर वाले कंपोनेंट्स को अलग डाल दो। सो दैट इज अ वेरी मच जेनेरिक वे। आई वुड जस्ट सजेस्ट कि तुम शुरू से ये प्रैक्टिस लेके चलो। लाइक जैसे अभी हमने होम फाइल बनाई ना, राइट नाउ आई यूज दिस एज इट इज, बट यू शुड क्रिएट अ फोल्डर जिसका नाम रख दो तुम द मेन पेजेस, तो उसके अंदर इस फाइल को डाल दो। एंड यू नो द फन थिंग अबाउट दिस इज कि तुम्हें लग रहा होगा कि वरना मुझे कितना कस्टमाइज करना पड़ेगा, बट अगर तुम मुझे फॉलो कर रहे हो थ्रू आउट दिस ट्यूटोरियल और तुमने कोई भी एक्सटेंशन या कोई भी लेक्चर मिस नहीं किया है, तो तुम जैसे पेजेस, ओके आई क्रिएटेड अ फाइल, तो तुम जैसे ही पेजेस नाम का एक फोल्डर बनाओगे ना और जस्ट इसमें फाइल्स डाल दोगे, तो तुम्हें कहीं भी फाइल का वो चेंज नहीं करना पड़ेगा पाथ। यू कुड जस्ट मूव इट एज इट इज, और ये देखो अपने आप यहाँ पे ना पाथ चेंज हो गया इसका, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ द एक्सटेंशंस आई हैव बीन यूजिंग हियर। सो इन केस यू आर स्टिल मिसिंग ऑन सम ऑफ द एक्सटेंशंस, जस्ट गो थ्रू द वीडियो सो फार डे 1 एंड डे 2। उसमें मैंने क्लियरली बताया कि कौन कौन सी एक्सटेंशंस रिक्वायर्ड है फॉर दिस। दैट मेक्स सेंस राइट? शुड वी प्रोसीड फर्दर? इस पेजेस अनदर फोल्डर अंडर, यस एग्जैक्टली। पेजेस को यूज करते हैं लाइब्रेरी फोल्डर के अंदर। ऑल वी डू इज हम अपनी मर्जी से फोल्डर बना सकते हैं, और ये पर्टिकुलर नहीं है कि हमें इसका यही नाम रखना है। इट इज जस्ट आवर प्रेफरेंस, ताकि हम अपने कोड स्ट्रक्चर को स्मूथ रख सके और ताकि हमें पता हो कि कौन से पेजेस में क्या क्या प्लेस है। बिकॉज ये तो हम छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, बट जब तुम एक बहुत बड़ी एप्लीकेशन बनाओगे तो उसमें एटलीस्ट 50 100 इतने ज्यादा पेजेस हो सकते हैं। सो तुम्हें आइडिया होना चाहिए कि कौन सा पेज तुम्हारा कहाँ प्लेस है और कैसे तुम किस पे ऑपरेट कर रहे हो। एंड दैट इज वाई यू कुड फॉलो ईदर ऑफ द स्ट्रक्चर्स और द वे आई फॉलो। सो दैट चेंज द पाथ ऑफ इट्स ओन। I will just tell you a bit more about the extensions that I have installed. So the main extensions that are implemented to change the path, you could use this. Awesome snippets होता ऐसा है ना, there is no particular extension की वो काम कर सकती है, there are multiple so, but कोई depreciate हो जाती है with the time, and that is why errors आ जाते हैं and they do not do। तो मैं personally एक Flutter की base extension install करता हूँ, which allows to create the stateless widget and so, and Flutter widget snippets use करता हूँ। Then there is Flutter files। Basically this, I guess this is the extension that handles कि मतलब अपने आप वो path वगैरह change हो जाए इसका। Apart from that there is Flutter Intel। ये Flutter Intel जब हम आगे project करेंगे मैं तुम्हें बताऊंगा इसका कैसे use आएगा। And there is a very favorite extension of me which is called PubSpec YML। और मुझे बताओ क्या यूज था उसने, अगर पिछले लेक्चर तुम लोगों ने अटेंड किया, जस्ट लेट मी नो व्हाई डिड आई यूज दिस पर्सपेक्ट असिस्ट। वी वर्क विद द पैकेजेस। हाँ हाँ एग्जैक्टली, ऐड डिपेंडेंसीज। तो हम नहीं चाहते कि हमें खुद से ढूंढ ढूंढ के वेबसाइट से उनका वर्जन ढूंढ ढूंढ के इंपोर्ट करना पड़े। वी लेट दैट हेडेक बी विद दिस पर्सपेक्ट असिस्ट फाइल। एंड ये कुछ पर्टिकुलर एक्सटेंशंस है दैट यू वुड इंप्लीमेंट इन योर प्रोजेक्ट, एंड होपफुली तुम्हारा भी द कोड वुड वर्क वेल। और ये जो डाटा एक्सटेंशन है, जब तुम फ्लटर इंस्टॉल करते हो, दिस गेट्स ऑटोमेटिकली इंस्टॉल्ड। फ्लटर एक्सटेंशन जब इंस्टॉल करते हो। सो if that is clear, now let's proceed to the next topic। और इसके बारे में मुझे थोड़ी सी बात करनी थी। आई नो दैट मोस्ट ऑफ यू वुड बी familiar totally with this padding and margin from CSS or whatever sources, like even if you are not from coding background, you know this कि मतलब padding और margin क्या होती है। but just still for a refresher, padding is basically जब हम उस component को भी include करके स्पेस डालें। बट मार्जिन पैडिंग अगर इस केस में होगा ना, अगर सपोज जैसे इसी को ले लूं मैं पैडिंग एंड मार्जिन को, सो अगर मैं इसको 25 पैडिंग दूं, तो वो 25 पैडिंग यहाँ से डिस्टेंस नहीं होगा, वो इंटरनली भी इसको कंसीडर करेगा एज अ ब्लॉक और उसकी पैडिंग देगा। बट मार्जिन ऑन द अदर हैंड लेट्स यू क्रिएट द पैडिंग बिटवीन द ब्लॉक्स। तो अगर यहाँ पे ये कंस्ट्रक्टर वाला जो ब्लॉक है, अगर मैं इसको पैडिंग दूंगा, तो ये जो आउटसाइड ब्लॉक है ना वो वैसे का वैसे रहेगा, बट दिस इनसाइड वुड श्रिंक अ बिट।
बट मार्जिन के केस में क्या होगा, ये सारा ब्लॉक मूव करेगा इधर भी. So that is the major difference between margin and padding. But Flutter के केस में padding and margin has multiple properties और उनको implement करने का एक particular way है जिसको मैं अभी तुम्हें बताऊंगा. So basically let's get back to this home और इसके अंदर जो ये है let's just wrap it with the columns containers. तो मैंने इसको कंटेनर के साथ रैप कर दिया, इसको कंटेनर के साथ रैप कर दिया. अब इस कंटेनर को आयरन वेट दे देते हैं. वर्किंग राइट. अब यहाँ पे भी मैं तुम्हें एक और इंटरेस्टिंग चीज बताऊं. सो अगर तुम यहाँ पे कंटेनर को देख रहे हो तो ये यहाँ पे काफी शार्प एजेस है. अगर तुम चाहते हो तुम कंटेनर के साथ भी प्ले करो, उसके साथ शेडोज दे सको, तो उसके लिए ऑल यू नीड टू डू इज क्लिक हियर डेकोरेशन एंड गो टू दिस प्रॉपर्टी कॉल्ड बॉक्स डेकोरेशन. अब तुम जैसे इस प्रॉपर्टी में आओगे तुम यहाँ पे मल्टीपल चीजें देख सकते हो, कलर, इमेज, बॉर्डर रेडियस एंड सो बॉर्डर रेडियस इज दैट कंपोनेंट जो इमेज की शार्पनेस को कम करता है. शार्पनेस इन द सेंस इसके एजेस को थोड़ा राउंड करता है. तो यहाँ पे भी तुम्हें बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी में जाना है, डॉट सर्कुलर, और यहाँ पे बस रेडियस दे दो 8 एंड तुम यहाँ पे देखोगे ओके. हाँ, ये चीज भी मैंने तुम्हें बतानी थी. सो बेसिकली व्हेन यू क्रिएट दिस डेकोरेशन, बॉक्स डेकोरेशन, तो ये एरर मुझे भी आता है एंड आई स्पेंड एटलीस्ट 30 to 45 मिनट्स ब्रेकिंग डाउन दिस एरर की आखिर क्या हुआ है. सो बेसिकली ऑल यू नीड टू डू इज ये कलर वाली प्रॉपर्टी है ना, अब इसको भी इसके अंदर देना है. एंड द रीजन फॉर दैट इज जैसे कि हमने देखा कि बॉक्स डेकोरेशन के अंदर ये प्रॉपर्टी थी कलर. तो अगर हम कलर प्रॉपर्टी को सेपरेटली देंगे सो देयर वुड बी अ सॉर्ट ऑफ डिस्कनेक्ट बिटवीन द चाइल्ड एंड पेरेंट एलिमेंट. और जैसे कि मैंने कहा हर चाइल्ड के लिए अकाउंटेबिलिटी उसका पेरेंट एलिमेंट होल्ड करता है. एंड इसीलिए बॉक्स डेकोरेशन का जो पेरेंट एलिमेंट है वो नहीं चाहता कि हम उसको अलग प्रॉपर्टी दें और इसके अंदर अलग डिफाइन कर दें. सो इसीलिए कलर जैसे जो भी प्रॉपर्टीज है इसके अंदर डिफाइंड है. और यू वुड सी आर्ट के रेडियस की यहाँ पे सर्कुलर, यहाँ पे बॉर्डर रेडियस लग गया है. एंड सेम वे यू वुड ऐड द शैडोज. शैडोज के केस में यू नीड टू पास अ लिस्ट टू इट दैट वी विल सी अ बिट लेटर जब मैं टू डू लिस्ट में मैंने वो इंप्लीमेंट करना है. सो अब यहाँ पे मैंने ये कंटेनर बना दिया. अब मैं तुम्हें बताता हूँ मार्जिन और पैडिंग का खेल. अगर तुम्हें मार्जिन यूज करनी है तो तुम सीधा यहाँ पे टाइप करो मार्जिन और यहाँ पे एज इंसेट्स नाम की प्रॉपर्टी होती है और उसी के लिए कंस्ट्रक्टर्स है सारे. सो कंस्ट्रक्टर बेसिकली मींस की क्लास का एक पर्टिकुलर एलिमेंट जिसका सेम नाम होता है, राइट. सो अब एज इंसेट्स के साथ अगर मैं डॉट ऑल करके लगाऊं सो इट इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी कि सारी तरफ मार्जिन दे देगा 8 रेडियस की. सीरियस. अब यहाँ पे मैंने जैसे कि कहा था कि जब तुम पैडिंग देते हो तो इंटरनल होती है, वो मार्जिन होती है एक्सटर्नल स्पेस. तो इसने यहाँ पे खाली जगह छोड़ दी, हर जगह 8 8 8. इस साइड भी इसने 8 देगी. बट अब तुम कहोगे यार नहीं, मुझे ना यहाँ नीचे नहीं चाहिए, यहाँ ना ऊपर मुझे चाहिए, मुझे बस साइड में चाहिए. तो उसके लिए तुम प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो सिमेट्रिक. एंड पर्सनली ये मेरा फेवरेट है. अब इसके अंदर पैरामीटर्स क्या पास होंगे, सपोज मुझे पता ही है कि क्या पैरामीटर्स पास होंगे, तो मैं सिमेट्रिक के ऊपर जाऊंगा तो यहाँ पे तुम्हें खुद बता देगा कि एक वर्टिकल लेगा और एक हॉरिजॉन्टल लेगा. तो मैंने कहा कि मुझे हॉरिजॉन्टल नहीं चाहिए, सिर्फ वर्टिकल चाहिए थी, तो मैं वर्टिकल लिखूंगा एंड आई विल जस्ट पास इट 8. देखो इसने वर्टिकल पैडिंग दे दी यहाँ पे. अब मैं सेम अगर मैं चाहता हूँ कि हॉरिजॉन्टल कर दूं तो हॉरिजॉन्टल कर देगा ये. डन. अब ये तो हो गया हॉरिजॉन्टल. बट तुम देख लो यहाँ पे विंडो पैडिंग. विंडो पैडिंग इज नथिंग कि जब तुम ना एक पर्टिकुलर विंडो का जैसे सपोज 500 साइज है तो तुम उसको डिवाइड करके निकाल सकते हो. बट टू बी ऑनेस्ट दिस इज लीस्ट यूज्ड प्रॉपर्टी इन इटसेल्फ, सो लेट इट बी. बट कमिंग अबाउट दिस वन इज माय वन ऑफ द फेवरेट. इससे तुम डिफाइन कर सकते हो हर एक इंस्टेंस के लिए. अगर तुम्हें इसे पढ़ना चाहते हो इट इज फ्रॉम लेफ्ट टॉप राइट बॉटम. सो व्हाट डज दैट टेल, जस्ट टेल मी. अ वेरी इजी कंसेप्ट. तो क्या पैरामीटर्स पास करने चाहिए मुझे, बताओ इसे, टेल मी. मैंने यहाँ लिख दी. अभी ये कह रहा है एरर आ रहा है बिकॉज इसके अंदर कुछ पैरामीटर्स पास होंगे, तो वो क्या होंगे. लेट मी लेट मी नो. अच्छा ये बताओ चलो कितने पैरामीटर्स पास होंगे. जैसे कि हमने ऑल के केस में देखा सिर्फ हमने एक पैरामीटर पास किया क्योंकि उसने हर जगह लगा दिया. सिमेट्री के केस में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स है तो उसमें 2 हुए. अब यहाँ पे जैसे कि मैंने तुम्हें बताया 4 चीजें बता रहे हैं फ्रॉम लेफ्ट टॉप राइट बॉटम एंड इसीलिए 4 कंपोनेंट्स पास होंगे इसमें. तो कुछ नहीं करना, कॉमा सेपरेट 3 4 5 1. हमने ये डाला तो ये करेगा क्या, ये बोलेगा लेफ्ट में 3 की पैडिंग दे दो, टॉप में 3 की दे दो, राइट साइड पे 4 की दे दो और बॉटम में 1 की दे दो. लो इसने वो कर दिया. अब इससे होता है ऐसा कि हम बहुत ज्यादा कस्टमाइज वे में हैंडल कर सकते हैं कि हमारा कौन सा कंपोनेंट कैसे प्लेस होगा. बट जैसे कि तुम्हें मैंने एक और चीज बताई है
अबाउट द पैडिंग, तो हम मार्जिन को हटाते हैं, हम पैडिंग डालते हैं इस कंटेनर में। करना कुछ नहीं है, कंटेनर का यहाँ जाना है, रैप विद पैडिंग, डन। अब ये वाली प्रॉपर्टीज तो तुम्हें पता है कि एजेंट सेट से आगे क्या हो सकता है, तो तुम कैसे उनके साथ खेल सकते हो, तो इसने भी वही काम कर दिया। अब अगर तुम इस मेन कॉलम को भी पैडिंग के साथ रैप करना चाहते हो, जस्ट रैप इट विद पैडिंग, तो ये पूरे इसके अंदर पैडिंग लगा देगा हर जगह से, राइट। अब तुम चाहते हो कि सपोज हेलो वाला टेक्स्ट है ना, तुम चाहते हो कि इसको थोड़ा यहाँ में सेंटर पे जाऊं और उसके लिए मैं पैडिंग यूज करूँ, तो तुम टेक्स्ट में जाओगे और इसको पैडिंग के साथ रैप कर लोगे। इसने यहाँ पे भी पैडिंग लगा दी, ग्रेट। अब मैं क्या करूंगा, ताकि मैं तुम्हें और आगे के कंपोनेंट समझा सकूं, इस कोड को उठाऊंगा, यहाँ से कॉपी पेस्ट करके नीचे बना दूंगा पूरा। इस किंग को हटाते हैं और यहाँ पे डालते हैं। अब देखो, हमने दो कंटेनर बनाए जिनमें ये पर्टिकुलर पैडिंग, और पैडिंग रिमूव करने का तरीका बहुत ईजी है। जैसे तुम सपोज किसी में पैडिंग नहीं लगाना चाहते, जस्ट यूज दिस रिमूव दिस विजेट टूल, एंड देखो यहाँ पे पैडिंग हट गई। सेम अगर मैं इसके अंदर आके करूँ, इस कॉलम के अंदर करूँ, तो मैं चाहता हूँ कि जो ऊपर वाला हेलो है वो पूरा इस टैब बार के साथ अटैच है। मैंने ये वाली पैडिंग हटा दी, अब ये यहाँ लग चुकी है। अब मुझे थोड़ा सा एक और चीज के ऊपर, एक और विजेट के ऊपर बात करनी थी, एक्सपेंडेबल एंड फ्लेक्सिबल। सो कितने लोग यहाँ से फैमिलियर है इस चीज के साथ? सीएसएस में कहीं पे भी तुमने ये वर्ड सुना होगा, फ्लेक्सिबल एंड एक्सपेंडेड शायद नहीं सुना होगा। फ्लेक्स तो हर अगर किसी ने सीएसएस में डेवलपमेंट किया तो उसने सुना होगा। कितने लोग जानते हैं फ्लेक्स बॉक्स के बारे में? Tell me, even if you don't know about CSS and Flexbox, just drop the message. Okay, there is one person. बाकी नहीं जानते तो नो डाल दो। आई विल उस अकॉर्डिंग से तुम्हें प्रॉपर पहले दोनों चीजों के बारे में ओवरव्यू दे दूं। ओके, बाकी लोग, सिर्फ दो लोगों का रिस्पांस आ रहा है, दो तीन बाकी। हाँ, ओके। सो बेसिकली होता कुछ नहीं है, हम अपने यूआई को रिस्पॉन्सिव बनाना चाहते हैं ताकि वो मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे यूज हो जाए। और फ्लटर की यही खासियत तो मैंने बताई थी कि फ्लटर को हम यूज कर सकते हैं मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे विदाउट गेटिंग द हैक्टिक अबाउट हैंडलिंग की क्रॉस प्लेटफॉर्म पे कोड अलग लिखें, यूआई अलग बनाए, सब कुछ तुम सिर्फ एक पे कर सकते हो। और उसके लिए एक्सपेंडेड एंड फ्लेक्सिबल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जब हमें अलग अलग रेशियोज के साथ खेलना है। सो ऑल यू नीड टू डू इज, जो तुम्हारा ये कंटेनर है इसको रैप करो एक विजेट के साथ जिसका नाम है एक्सपेंडेड। अब तुम एक्सपेंडेड विजेट को जैसे ही रन करोगे, देख रहे हो, अब मैं इसको थोड़ा और सेंटर में लेके आऊं, ये क्या करेगा, ये देख रहे हो, दिस विजेट हैज बिकम रिस्पॉन्सिव। और ये काम सिंपली किसका है, एक्सपेंडेड विजेट का। तो अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे जितने भी कंटेनर्स है तुम्हारी एप्लीकेशन में वो रिस्पॉन्सिव हो जाए, all you need to do is just add this expanded wrap with expanded widget and it would be done। अब इसमें और प्रॉपर्टीज है वो हम आगे देखते हैं, बट द बेसिक आइडिया इज दिस। फ्लेक्सिबल है वो भी बिल्कुल सिमिलर काम करेगा, बट द ओनली डिफरेंस बिटवीन एक्सपेंडेड एंड फ्लेक्सिबल एटलीस्ट इन फ्लटर इज फ्लेक्सिबल टेक्स ओनली द नीडेड स्पेस एंड एक्सपेंडेड टेक्स ऑल द स्पेस अवेलेबल। तो अब यहाँ पे मैंने एक्सपेंडेड लगाया ना, अगर मैं इसकी जगह यहाँ पे फ्लेक्सिबल लिखूँ, देख रहे हो, ये वहीं का है। जब मैंने एक्सपेंडेड डाला था उसने जितनी स्पेस देखी स्पेस के ऊपर वो सारी ले ली, और जब फ्लेक्सिबल यूज किया उसने उतनी स्पेस ली जितनी उसको चाहिए। बट वो कहता है कि अगर हाँ, अगर इससे भी कम स्पेस है तो मैं खुद को एडजस्ट कर लूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है खुद को एडजस्ट करने में, बट जितनी मैक्सिमम स्पेस है मैं उतनी लूंगा। तो अगर अब इस केस में मैं अगर हाइट को और बढ़ा दूं 200, तो एक्सपेंडेड कहता है कि मुझे इस हाइट विजेट से कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम जितनी मर्जी दे दो, मुझे जितनी जगह मिलेगी मैं ले लूंगा। बट फ्लेक्सिबल इज लाइक प्रॉपर फ्लेक्सिबल, उसे पता है कि स्पेस कम है तो जितनी मुझे कहा गया है लेने के लिए मैं उतनी लूंगा, एंड दैट इज व्हाई फ्लेक्सिबल इज इन मच यूज एज कंपेयर टू द एक्सपेंडेड विजेट, राइट। अब फ्लेक्सिबल के अंदर भी दो तीन प्रॉपर्टीज हैं जिसको हम जल्दी से देख लेते हैं। सो एक्सपेंडेड के केस में, फ्लेक्सिबल के केस में अगर तुम फिट को कर दो ना, फ्लेक्स का मतलब होता है कि तुम उसको अलाउड कर दो कि अच्छा तुम इस रेशो में स्पेस लो। तो अगर मैं इस वाले को भी रैप करूं, रैप विद विजेट फ्लेक्सिबल फ्लेक्स 1, तो अब इसका बिल्कुल सिंपल मतलब है कि 2:1 के केस में तुम स्पेस खेलो, डबल स्पेस तुम लो, उससे आगे स्पेस तुम लो, एंड ये वैसा ही करेगा। तो अब दोनों विजेट्स हमारे बन चुके हैं एक्सपेंडेबल। बट अब इस केस में अगर मैं ना फ्लेक्सिबल के नीचे बिल्कुल एक प्रॉपर्टी डाल दूं फिट,
तो फिट प्रॉपर्टी क्या करती है, इसके अंदर पैरामीटर जाता है फ्लेक्स फिट, और इसमें तुम देख सकते हो सिर्फ दो प्रॉपर्टीज है, फ्लेक्स फिट एंड फ्लेक्स टाइप। फ्लेक्स टाइप क्या होता है, इट इज द डिफॉल्ट पोजीशन ऑफ अ फ्लेक्सिबल, कि जितनी जगह चाहे खाली मिलेगी वो खाली जगह नहीं लेगा, बट जैसे तुम फ्लेक्स फिट को लूज कर देते हो दैट बिकम्स एन एक्सपेंडेड विजेट। बेसिकली वो एक्सपेंडेड विजेट की तरह बिहेव करने लग जाएगा। फिर वो देखेगा कि मुझे नहीं मतलब कि हाइट कितनी दे रखी है, तुमने मुझे लूज कर दिया, मुझे बाउंड करके नहीं रखा, तो मुझे जितनी जगह मिलेगी मैं सब ले लूंगा। So that was just a basic brief about expanded and flexible widget, और ये मैंने तुम्हें क्यों दिया मैं तुम्हें बताऊंगा आगे, आगे वाले असाइनमेंट्स में तुम्हें बताऊंगा कि इसकी क्या रेलेवेंस होने वाली है एक्सपेंडेबल विजेट्स की। बट बेसिकली द मेन पर्पस ऑफ यूजिंग द फ्लेक्स बॉक्स एंड एक्सपेंडेड एंड फ्लेक्सिबल विजेट इज टू गिव दिस रिस्पॉन्सिवनेस इन आवर एप्लीकेशन। एंड आई वांट यू टू लाइक, अगर तुम इसको एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो, ट्राई क्रिएटिंग फ्लेक्सबॉक्स एंड एक्सपेंडेड विजेट्स इन डिफरेंट साइजेस एंड डिफरेंट स्टाइल्स। अपने यूआई को बनाओ एक वेबसाइट के लिए, एक फोन के लिए, एक टैबलेट के लिए, और उसमें तुम देख सकते हो कि जैसे तुम किसी भी विजेट को यूज करना चाहते हो, जस्ट रैप इट विद दिस एक्सपेंडेड विजेट, और वो हैंडल कर लेगा कि इसका साइज चेंज हो रहा है, प्रॉपर्टीज चेंज हो रही है। ऑफ कोर्स हम रिस्पॉन्सिवनेस को थोड़ा और डिटेल में आगे समझने की कोशिश करेंगे इन द अपकमिंग ट्यूटोरियल्स, बट लेट मी नो इफ द थिंग्स आर क्लियर टिल दिस पॉइंट, बिकॉज अब हम थोड़ा डीप डाइव करने वाले हैं अपने टू डू लिस्ट के अंदर, और उसके अंदर ये सारे विजेट्स कहीं ना कहीं यूज होंगे, इसलिए मैंने तुम्हें थोड़ा सा ब्रीफ दे दिया कि कैसे कैसे पर्टिकुलर विजेट्स यूज होता है। जस्ट लेट मी नो, सारी चीजें अभी तक क्लियर चल रही हैं? ग्रेट ग्रेट। सो अब मैं इसको बंद करके तुम्हें लेके चलूंगा अपनी टू डू लिस्ट के ऊपर। सो till the starting of the session I had this four submissions, and उसमें से I really found कि जो तनु ने बनाया that is a really good attempt to make the UI. The Bhumika and Athar का तो like they were similar, but still that was a good try to create the UI part of that. But उसमें functionality कैसे ऐड कर सकते हैं the Bhumika and Athar, I will tell you right away कि मतलब तुमने जैसे on change वगैरह सब खाली छोड़ रखे थे, I will let you know now. And kudos to Tanu. And is Rikto in this meet? No, he isn't. So basically, I uploaded the code, and just after my uploading the code on the GitHub, 1 hour later, Rito submitted his assignment, and that was practically the same code that I submitted on the GitHub. So I'm not very sure that how did he manage to make the same code out of it. So just wait for a second. I'll just open my to-do list, and then we will try. And I encourage कि तुम सब connect your mics or whatever and get into a better place. So I would like you to take the charge of this too in between and try explaining the widgets and components that we have seen so far in today's tutorial and the later one too. Is that okay for all of you? So yeah, my screen is visible to you guys. I will just start breaking down this before उसके पहले let's just select the emulator, ताकि जितनी देर में हम इसका थोड़ा प्रोसेसिंग करें इसके बारे में बात करें, ये चल जाए। So yeah, coming back to this file. और हाँ, मैं तुम्हें एक और इंटरेस्टिंग चीज बताना चाहता हूँ रिगार्डिंग दिस। सो दिस इज नॉट वेरी मच लाइक कि बहुत कोई खास बात है, बट स्टिल लाइक आई एंजॉय क्रिएटिंग दिस सॉर्ट ऑफ, एंड अगर तुम्हें भी ये चीजें परेशान करती हैं जो अभी तुम्हें दिखेंगी। So yes, our emulator is ready. Now, coming back to this, this is what we are trying to create sort of, एंड फॉर दैट हमने चार कंपोनेंट्स को यूज किया है। और जैसे कि तुमने कहा, तुमने देख सकते हो यहाँ पे मैंने पेज की स्ट्रक्चरिंग कर रखी है, द पेज इज होम पेज एंड utils contain the two types of code that we would be using so far again and again. So the todo.dart thing contains this container and the type, जिसके अंदर I have created this container और उसके अंदर ये host के अंदर element पेश किए हैं। Of course we will be looking at that in much depth in just a second. I just hope I have not done a mistake to open Android emulator in a session, because this the system load is getting quite heavy. हाँ, but coming back,
तो मैंने यहाँ पे जैसे कि इस यूआरएल में आई हैव यूज्ड दिस to do dot dart जिसके अंदर कंटेनर्स डाल रखे हैं ताकि मैं उस कोड को बार-बार यूज कर सकूं एंड द डायलॉग बॉक्स कंटेन्स द कोड टू ऐड न्यू टास्क एंड होम ऑफ कोर्स जहां पे हमारा कोड का मेन काम होता है एंड दिस मेन डार्ट कंटेन्स दिस प्राइमरी स्वैच फंक्शन जो अभी हम थोड़ी देर पहले देख के आ चुके हैं एंड इसके अलावा देयर इज दिस थीम एंड नाउ आई वुड लाइक अ पर्सन टू वॉलंटियर हियर भूमिका प्लीज टेल मी बहुत बेसिक चीज यूज करेंगे इसमें जस्ट टेल मी द थिंग्स यूज्ड इन तो बेसिकली आपने पहले मटेरियल आपके अंदर आपने डीबग शो चेक मोड बैनर फॉल्स कर दिया जिससे जब आप उसको प्रेजेंट करो तो आपको डीबग का साइन आए देन आपने टाइटल डाल दिया उसके बाद आपने थीम डेटा के अंदर अपना प्राइमरी स्विच येलो कर दिया जिससे जो आपका बैकग्राउंड थीम रहेगा वो येलो के बेसिस में रहेगा देन आपने जो टू डू लिस्ट का डाला था उसके बेसिस पे आपने उसकी हेडलाइन का फॉन्ट साइज और आपने उसको बोल्ड कर दिया और आपने उसका कलर अलॉट कर दिया दैट्स ब्लैक हाँ ग्रेट ग्रेट एंड बस उसके बाद मैंने इसको बता दिया कि हमारा होम जो मेन पेज होने वाला होम पेज होने वाला थैंक यू भूमिका यस सो अब हम अपने होम पेज पे आ जाते हैं तो मैंने इसको बोला होम पेज से कोड चलेगा सो मैंने जैसे कि कहा कि काफी बड़ा होने वाला है बिकॉज इसमें बहुत सारी चीजें ऐड की हैं बट rather than कि मैं तुम्हें ऊपर से नीचे ब्रेक डाउन करूं आई विल टेल यू कि एक प्रोग्रामर मैंने कैसे क्रिएट किया था ऐसे सो फर्स्ट ऑफ ऑल द मेन थिंग इज इंपोर्टिंग दिस मटेरियल डॉट डाट फाइल उसके बाद एक स्टेट फुल विजेट बनाया मैंने जिसका मैंने नाम रख दिया होम पेज और होम पेज की स्टेट बन गई जस्ट इग्नोर दिस पोर्शन ऑफ कोड बिकॉज ये तुम जैसे जैसे एप्लीकेशन बनती जाएगी दिस थिंग्स आर एडेड फाइल लेटर ऑन सो हम स्कैफोल्ड के अंदर आ जाते हैं स्कैफोल्ड के अंदर मैंने क्या किया मैंने बैकग्राउंड कलर दिया जिसको थीम दिया थीम देना हमने अभी सीखा था कि हम कैसे थीम दे सकते हैं अपने बैकग्राउंड कलर को मैंने थीम दिया ऐप बार बनाया ऐप बार के अंदर टाइटल दे दिया टू लिस्ट और उसको स्टाइल दे दिया जो हमने अभी हेडलाइन को डिफाइन किया था एक्स थीम के जरिए सेंटर टाइटल मैंने 2 कर दिया एलिवेशन मैंने तुम्हें पिछले ट्यूटोरियल में बताया था दैट एलिवेशन टेल्स की तुम्हारा जो ऐप आ रहा है वो कितना एलिवेटेड होगा और उसमें कितनी शैडो होगी द मोर द एलिवेशन मोर द ब्लरी शैडो इट विल बी एंड शैडो कलर मैंने बता दिया ब्लैक होगा सो दैट हैपेंस देयर अब जस्ट इग्नोर दिस लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर इटसेल्फ बिकॉज ये भी मैं तुम्हें बताऊंगा दैट दिस वाज नॉट फर्स्ट इनिशियली कि मैंने लिस्ट डॉट व्यू बिल्डर बनाया अब मुझे ये बताओ कि मैंने तुम्हें असाइनमेंट दी थी सबको कि लिस्ट व्यू के बारे में स्टडी करके आओ तो किन किन लोगों ने स्टडी किया एंड how many of you are familiar with list view or just would you turn on your mic if possible, please hmm? या So would you try breaking down this sort of कि यहाँ पे क्या क्या कि सारे कंपोनेंट सेल्फ एक्सप्लेन कर रही है just ignore this return to do part उसके अलावा जितना you could just try sort of debugging or going through it Okay, so basically, I guess what we have done, we have created a list view builder. With the list view builder, what we don't have a particular length, so we have added the item count, where the item count is whatever the length of the to-do list is, and then we have the item builder, where we have the index for each item, and then to explain the return part as well, like every time there's a task name, it's stored at the index, which we take from the item builder, and then the task. I don't know what this means, but whenever that is changed, the value is changed, the checkbox value changes as well. Like suppose if it's 0, then it changes back to 1, and respectively. And then you have the delete function, and the delete function is another, I guess, function you must have created somewhere. yeah Other than this, we have the floating action button, where you have created another floating action, which whenever on pressed, you must have created a create new task function. It executes that function, and then you have a child icon, and that will be displayed in the floating action. great that is pretty much it about this whole thing and so basically अभी मैंने यहाँ पे क्या किया है एज ऑब्वियसली एक्सप्लेन मैंने आइटम काउंट दे दिया कि अच्छा ये टू लिस्ट की लैंग्वेज में होगी जस्ट इग्नोर दिस कि ये कहाँ से आ रहा है और ये इंडेक्स बिल्डर वगैरह क्या चल रहा है जस्ट कम टू दिस टू डू रिटर्न टू डू तो टू डू के अंदर अब हम चलते हैं इसके अंदर सो आई विल जस्ट कंट्रोल दिस एंड आई विल रीच टू दिस यूटिल्स फोल्डर के अंदर दिस टू डू डॉट डाट फाइल अभी ये इतनी सारी चीजों के अंदर तुम्हें जस्ट गिव मी अ थम्स अप अगर तुम सबको याद है कि हमने इसे पिछली क्लास में इंप्लीमेंट किया था दिस रिक्वायर्ड दिस डॉट कंस्ट्रक्टर ताकि हम यूजर से ले सके उस चीज की इनपुट हमने स्वाइप कार्ड्स के अंदर उसके कलर को डिफाइन किया था ना यूजर से लेके तो हमने बोला था कि अच्छा एक कलर प्रॉपर्टी बना दो उसका एक कंस्ट्रक्टर बना दो रिक्वायर्ड डॉट दिस और जब भी वो फंक्शन कॉल होगा तो उसमें कलर की प्रॉपर्टी पास होगी सो टेल मी कि यू आर फेमिलियर विद दिस राइट ओके ग्रेट ग्रेट अदर्स टू सो बेसिकली हमने वही चीज की है
अब इस पार्ट को भी थोड़ी देर इग्नोर कर दो बिकॉज दिस वुड बी एडेड लेटर ऑन दिस फंक्शन। तो हमने क्या किया, टू डू लिस्ट के अंदर आए, मटेरियल को इंपोर्ट करवाया और उसके अंदर हमने एक स्टेटलेस विजेट बना दिया और ये सारे रिक्वायर्ड वगैरह इसके कंस्ट्रक्टर है, ये बाद में इंप्लीमेंट हुए। अंदर क्या किया हमने, यहाँ पे तुम पैडिंग को फिर अपना फैमिलियर चीज देख सकते हो, जैसे कि हमने अभी पढ़ा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट बॉटम। तो मैंने क्या किया 25 25 25 एंड 0, मतलब बॉटम में कोई वो नहीं है। अगर मैं बॉटम में यहाँ पे 25 कर देता तो यहाँ पे भी स्पेसिंग इंक्रीज हो जाती, राइट। अब ये सारी चीजों को भी इग्नोर कर दो बिकॉज दे वर एडेड लेटर ऑन। सो हमने क्या किया, कंटेनर बनाया, उसके अंदर हमने फिर पैडिंग दे दी थी अच्छा 25 की, और ये 25 की पैडिंग इसके अराउंड हुई है ताकि ये काम कर सके। और उसके अंदर जैसे कि मैंने तुम्हें बताया बॉक्स डेकोरेशन के अंदर गए, हमने कहा कि अच्छा इस बॉक्स को कलर दे दो येलो और इसके बॉर्डर रेडियस को कर दो 12 सर्कुलर। सो वो यहाँ पे सर्कुलर चीज ऐड हो चुकी है। अब जैसे कि मैंने बात की थी बॉक्स शैडो की, दैट टेक्स लिस्ट एज एन इम्प्लीमेंटेशन। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, हम बॉक्स शैडो नाम की एक लिस्ट बना लेते हैं एंड यू नो व्हाई इट इज एडेड, ताकि हम मल्टीपल रेंज ऑफ शैडोज दे सके। तो यहाँ पे तो एक शैडो है, अगर हम चाहते हैं कि और शैडोज लग जाए, सो दैट इज व्हाई इट इज एडेड सो। बट बेसिकली आई हैव यूज्ड वन शैडो हियर, तो मैंने बॉक्स शैडो बनाया एक और उसको पास कर दिया कि अच्छा इतनी इतनी शैडो चाहिए। अब तुम देख रहे होगे कि फ्रॉम ARGB ये क्या चीज है, तो ये तुम्हारे मतलब की चीज नहीं है। तुम सिंपली ब्लैक कलर देके उसको ऐसे यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, यहाँ से, तो वो ऑटोमेटिकली हैंडल कर लेगा कि कितनी पोजीशन पे जाएगा। एंड ये ट्रांसपेरेंसी हैंडल करता है और ये कलर हैंडल करता है। सो बेसिकली दैट्स प्रेटी मच फ्रॉम ARG जो मैंने यूज किया है। अब इसके बाद मैंने कहा कि अच्छा बॉक्स की डेकोरेशन वगैरह होगी। अब इसके अंदर चाइल्ड प्रॉपर्टी क्या है, रो क्यों है, क्योंकि इसके अंदर दो चीजें हैं, एक तो ये चेक बॉक्स है और एक ये टेक्स्ट है। तो मैंने कहा एक रो बनाओ और उसके अंदर चिल्ड्रन बना दो, एक तो चेक बॉक्स और एक टेक्स्ट। और चेक बॉक्स मैंने तुम्हें कहा था स्टडी करने के लिए। तो चेक बॉक्स के अंदर जो बिल्कुल दो प्रॉपर्टीज है जिसके बिना ये चल ही नहीं सकता, तुम यहाँ पे देख सकते हो, रिक्वायर्ड बूल वैल्यू, रिक्वायर्ड फंक्शन ऑन चेंज। सो ऑन चेंज टेल्स की जब तुम चेक बॉक्स को चेंज करोगे तो क्या होगा, एंड वैल्यू होती है कि टास्क कंप्लीट हुआ या नहीं। जैसे कि जसविता ने बताया टेक्स द वैल्यू की 0 और 1, 0 मतलब टास्क कंप्लीट हो गया है, नहीं हुआ है, 1 मतलब टास्क कंप्लीट हो चुका है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने इसको एक्टिव कलर दे दिया बिकॉज अगर इसका डिफॉल्ट कलर मैं इसको कमेंट कर दूं, सो दिस डिफॉल्ट कलर डज नॉट लुक सो प्रॉमिसिंग टू द आईज। तो मैंने क्या किया, इसके अंदर यहाँ गया, मैंने इसको कहा कि एक्टिव कलर कर दो। तो अब जब कभी भी मतलब ये चेकबॉक्स एक्टिव होगा, जब कभी भी 1 वैल्यू लेगा तो ये ब्लैक कलर में आ जाएगा। एंड टेक्स्ट के अंदर मैंने क्या किया, टेक्स्ट को टास्क नेम दे दिया, इसको भी अब इग्नोर करो। सपोज यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है टास्क का नाम टास्क नेम, और उसके अंदर मैंने स्टाइल प्रॉपर्टीज के अंदर इसको फॉन्ट साइज दे दिया और डेकोरेशन को भी अभी के लिए तुम छोड़ सकते हो। सो दैट वाज जस्ट बेसिक की, मतलब इससे तुम्हारा क्या होगा, इतना पोर्शन तुम्हारा बन जाएगा। इसके अंदर अब फंक्शनैलिटी कैसे ऐड करें, तो हम अपने चेकबॉक्स के अंदर वापस आएंगे। अब उसको वैल्यू असाइन करनी है हमें, तो हम गए एक टास्क कंप्लीटेड नाम के अंदर, हमने बनाया एक बूलियन फंक्शन। जैसे कि मैंने बताया था फाइनल होता है कि जिसकी पूरी थ्रू आउट द कोड वैल्यू चेंज नहीं होगी, इसलिए हमने कहा फाइनल बूल स्ट्रिंग और फाइनल स्ट्रिंग टास्क नेम। ये हमने नाम दे दिया कि अच्छा टास्क जो होगा उसका नाम होगा टास्क नेम और टास्क कंप्लीट होने की वैल्यू होगी टास्क कंप्लीटेड। और जहां जहां ये वैल्यूज रिक्वायर्ड थी हमने असाइन कर दी। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो टास्क नेम यहाँ पे असाइन हो चुका है टेक्स्ट के अंदर, और वैल्यू के अंदर टास्क कंप्लीटेड असाइन हो चुका है। जस्ट लेट मी नो यहाँ तक चीजें ठीक आ रही है, ओवरवेलमिंग तो नहीं हो रहा, सब समझ आ रहा है। ये सारे विजेट्स अभी हम थोड़ी देर पहले देख के आए हैं, तो आई होप कि किसी भी के अंदर तुम्हें अभी तक कोई डाउट नहीं होगा बिकॉज अभी जैसे जैसे चीजें ऐड होती जाएंगी द थिंग्स वुड पाइल अप इनिशियली। सो अब मैंने इतना कर दिया, अब इसके बाद मुझे चाहिए कि ऑन चेंज तो वैल्यू चेंज हो जाए। तो ये देख रहे हो ना, जैसे तुम ये चेंज हो रहा है, तो हमने क्या करा, हमने बोला कि अच्छा एक फंक्शन बना लो बूल का ऑन चेंज, और ये तुम ये देख रहे हो क्वेश्चन मार्क्स। तो ये डार्ट के अंदर एक बहुत ही एसेंशियल कंपोनेंट है इसका, दैट इज कॉल्ड नलिफाई समथिंग लाइक दैट। मतलब बेसिकली कहते हैं कि जीरो वैल्यू कभी नहीं दे सकता डार्ट। डार्ट के अंदर किसी भी कंपोनेंट को अगर तुम बिना इनिशियलाइज करे वैल्यू देना चाहते हो, खासकर जो इंटीजर्स एंड बूलियन वैल्यूज होती हैं, तो उस केस में तुम्हें ये लगाना पड़ेगा जो बता देगा कि अच्छा इसकी वैल्यू जीरो नहीं होगी कभी भी, बिकॉज अगर वैसा होता है तो वैल्यू एम्प्टी रह जाती है, देन दिस कॉज द एप्लीकेशन टू ब्रेक डाउन ऑन मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स। दैट इज व्हाई एक क्वेश्चन मार्क एडेड है यहाँ पे। सो हमने एक फंक्शन बना लिया बूल ऑल चेंज करके। अब हमने क्या करा, हमने बस यहाँ पे फंक्शंस को डिफाइन करा है, हम चाहते हैं कि वो फंक्शन ऑटोमेटिकली हैंडल हो जाए उसके अंदर, हमारे कोड के अंदर। सो ये हमने एक टू डू लिस्ट की टाइल बना ली। अब जब हम अपने मेन के अंदर आएंगे, हमने क्या करा, लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर बनाया और एक हमने टू डू लिस्ट बना ली। यहाँ पे टू लिस्ट में क्या, टू डू लिस्ट के अंदर मैंने एक और लिस्ट बनाई। तो यहाँ पे प्रोग्रामिंग से तो सब फैमिलियर है ना, एटलीस्ट कोई भी लैंग्वेज हो सकती है, तो एरे का कंसेप्ट तो सबने पढ़ा होगा, राइट। एंड अगर मैं थोड़ा और स्पेसिफिक बोलूं, मल्टी डायमेंशनल एरे के बारे में सुना सबने, 2D 3D एरेज, बाकी लोग, हाँ बस फिर वही हमने यहाँ पे करा। हमने एक लिस्ट बनाई, तुम इसको एरे की तरह भी ट्रीट कर सकते हो। इसके अंदर हमने क्या करा, 2D एरे बना दिया जिसका पहला कंपोनेंट होगा कि जो हमारा टास्क है, और दूसरा हमेशा डिफॉल्ट फॉल्स क्यों रहेगा, क्योंकि हम जब भी टास्क ऐड करेंगे वो कभी कंप्लीट तो होगा नहीं। तो इसके लिए हमने एक लिस्ट बना ली ताकि हम आउटपुट देख सके कि खाली जब हमारी एप्लीकेशन रहती है तो उसके अंदर कुछ तो पड़ा होना चाहिए ताकि हम उसकी आउटपुट देख सके, राइट। सो हमने लिस्ट बना ली। अब हम अपने लिस्ट व्यू बिल्डर के अंदर आए। लिस्ट व्यू बिल्डर क्या करता है कि हमें नहीं पता कि कितने एलिमेंट्स और ऐड होंगे, इसीलिए उसकी जो लेंथ है ऑटोमेटिकली इंक्रीज होती जाएगी इस फंक्शन के द्वारा।
तो ये टू डू लिस्ट की उसने लेंथ एक्सट्रैक्ट कर ली एक इंटीजर के फॉर्म में और इसको बता दिया अच्छा इतनी लेंथ होगी। अब आइटम बिल्डर क्या करता है, वो बताता है कि इस टू डू लिस्ट के अंदर जो लिस्ट व्यू है उसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स प्रेजेंट होंगे। तो हमने क्या करा, रिटर्न अ टू डू, इसके अंदर हमने टास्क नेम दे दिया टू डू लिस्ट का इंडेक्स। इंडेक्स क्या है इस केस में, इंडेक्स बेसिकली मींस की 0th एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट। तो अब इसके अंदर हम जितने टास्क ऐड करेंगे ये एक फॉर लूप की तरह एक्ट करेगा, इंडेक्स तक जाएगा 0 से लेके और वो सारे लेवल के टास्क नेम को डिफाइन कर देगा। टास्क नेम के अंदर ये कैसे पहुंचा, क्योंकि हमने इसको उसके अंदर 0 इंडेक्स दिया। तो जैसे तुम देख सकते हो 2D एरे में, तो ये क्या करेगा, सबसे पहले जाएगा इसके इंडेक्स के अंदर, इस लिस्ट के अंदर, ये देखेगा यहाँ पे दो कंपोनेंट्स है और हमने डिफाइन किया 0, तो 0 इंडेक्स पे है एक्सरसाइज या फिर कोई भी टास्क। जब हमने 1 इंडेक्स डिफाइन किया तब ये देखेगा अच्छा टास्क कंप्लीटेड की अभी वैल्यू क्या है, तब ये फॉल्स वाले पैरामीटर पे जाएगा। अब हमने तीसरी चीज इसको क्या पास करी थी, ऑन चेंज। तुमने बोला ऑन चेंज वैल्यू, अब यहाँ पे वैल्यू लिखा है, जरूरी नहीं तुम वैल्यू लिखो, यहाँ पे तुम कंटेक्स्ट भी लिख सकते हो, फिर तुम्हें यहाँ भी कंटेक्स्ट लिखना पड़ेगा। दैट्स इट। अब हमने क्या करा कि चेकबॉक्स चेंज्ड। चेकबॉक्स चेंज क्या है, एक हमने फंक्शन क्रिएट करा जिसके अंदर हमने दो पैरामीटर्स दे दिए। एक तो है कि वैल्यू फॉल्स करनी है, ट्रू करनी है और कौन से इंडेक्स पे करनी है हमें। तो इसके अंदर हमने सेट स्टेट फंक्शन को इंप्लीमेंट किया। सेट स्टेट फंक्शन मैंने पिछले जब बिल्कुल बेसिक ट्यूटोरियल बनाया था उसमें बताया था कि जब कहीं भी हम फ्लटर में यूज करते हैं कि हमें कोई चीज को चेंज करना है, किसी वैल्यू को इंक्रीज करना है, इन दैट केस वी यूज दिस सेट स्टेट फंक्शन। सो आई होप यू आर फैमिलियर विद दैट एडिंग कोडिंग निंजा ऐप, जिसमें हमने करा था कि काउंट को इंक्रीज करते जाओ, तो वहां पे मैंने सेट स्टेट फंक्शन को अच्छे से एक्सप्लेन किया था। तो अगर किसी को रिफ्रेशर चाहिए दे कुड चेक दैट, राइट? डज दैट मेक सेंस? Ayush, could you please show the to-do.dart file once? Okay. Okay, we're just using containers, right? हाँ, I'm using a container. Okay, great. हाँ, so मैंने क्या करा कि सेट स्टेट फंक्शन के अंदर आया और मैंने बोला कि अच्छा इसकी स्टेट चेंज कर दो, इंडेक्स की उल्टी कर दो। तो इसने क्या करा, चेक बॉक्स चेंज में जैसे ही उसने बोला कि अच्छा जैसे तुम चेक बॉक्स पे क्लिक करोगे इसकी जो इनिशियल स्टेटस को चेंज कर दो, तो भी 0th स्टेट पे है। तो मैंने कहा, अब मैंने इसको प्रेस कर दिया, ऑन चेंज फंक्शन के अंदर गया, उसने देखा कि कौन से इंडेक्स पे चेंज हुआ है। तो उसने क्या करा, उसकी इनिशियल स्टेट देखी क्या है, उसको कर दिया उसके ऑपोजिट से। ये जो सिंबल है ये स्पेसिफाई कर रहा है कि उसकी स्टेट को उल्टा कर दो। तो अब इसकी स्टेट चेक्ड है, तो अगर इसको मैं ऐसे दबाऊंगा तो ये अनचेक्ड हो जाएगी। सो दैट वाज प्रीटी मच अबाउट दिस कोड की जो चेकबॉक्स चेंज है वो कैसे काम करता है। अब ये तो हो गया कि चेकबॉक्स कैसे करेंगे, ये डिलीट फंक्शन को भी भूल जाओ क्योंकि हम बाद में ऐड करेंगे। अब हमने इतना देख लिया कि हम चेकबॉक्स हमारा काम करने लग गया, बट अब तुम देख रहे हो लाइन स्ट्राइक आ रही है। तो अगर तुम यहाँ तक ही करोगे तो तुम्हारी लाइन स्ट्राइक नहीं होगी। उसका रीजन क्या है, क्योंकि हमने ये बताया नहीं कि टेक्स्ट डेकोरेशन के अंदर कैसे। अब तुम यहाँ वापस आओ, तो जहां पे हमने फॉन्ट साइज दिया है तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी है डेकोरेशन करके, टास्क कंप्लीटेड। तो बाय डिफॉल्ट अगर मैं कॉमा हटाऊं, सो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे ना जो टेक्स्ट डेकोरेशन होती है वो ये होती है कि लाइन थ्रू कर दिया हमने कि जो टेक्स्ट है वो हमेशा लाइन थ्रू रहे। बट इस पे थोड़ा सा भी कंसेप्ट यूज होगा इफ एंड एल्स का, जो तीन पैरामीटर्स में हम सीपी में यूज कर सकते थे ना कि जब हम क्वेश्चन मार्क डालते हैं तो अगर वो ट्रू है स्टेटमेंट तो इस वाले पे रिटर्न कर जाओ वरना दूसरे वाले पे। तो यहाँ पे क्या है, ये टास्क कंप्लीटेड फंक्शन है जो हमने अभी देखा थोड़ी देर पहले कि टास्क कंप्लीटेड बताता है कि वो टास्क की वैल्यू 0 है या 1। तो अगर वैल्यू 0 है तो ये कहेगा कि उसकी लाइन थ्रू मत करो बिकॉज हमें चाहिए कि ट्रू हो स्टेटमेंट। तो अगर इसकी स्टेटमेंट ट्रू होती है या मतलब कि 1 होती है देन दिस विल लाइन थ्रू, मतलब टेक्स्ट की डेकोरेशन को कर दो ऐसे। और अगर ये ट्रू नहीं है तो इन दैट केस द टेक्स्ट डेकोरेशन रिमेन्स नन। दिस वॉज अबाउट दिस थिंग। अब हम बेसिक अपना हमारा ये तो चलेगा कि अच्छा जैसे हम टेक्स्ट को ये कर दे रहे हैं तो वो ट्रू हो जा रहा है, ऑफ कर रहे हैं तो ऑफ हो जा रहा है। अब हमारा अगला स्टेप क्या होगा कि हम टास्क को ऐड कैसे कर सके और टास्क कैसे ऐड कर सके। उसके लिए हम अपने कोड में वापस आते हैं। तो अब हमने बनाया फ्लोटिंग एक्शन बटन, उसके अंदर हमने चाइल्ड प्रॉपर्टी दे दी आइकन्स डॉट ऐड। अब हमें ये भी बताना है कि ऑन प्रेस करके क्या होना चाहिए। तो हमने कहा कि ऑन प्रेस करके एक फंक्शन बना लेते हैं जिसका नाम रखते हैं क्रिएट न्यू टास्क। अब हम क्रिएट न्यू टास्क के अंदर आए और ये प्रॉपर्टी एक डायलॉग बॉक्स की। सो डायलॉग बॉक्स इज नथिंग की जैसे तुम इसको क्लिक करोगे इससे छोटा सा बॉक्स पॉपअप हो जाएगा। और ये कैसे बना, इसके अंदर पहली जो प्रॉपर्टी होती है दैट इज कंटेक्स्ट, बेसिकली टेक्स्ट की कहां से ये रेफरेंस लिया है। द बिल्डर इज द मेन गेम हियर। हम बिल्डर के अंदर क्या रिटर्न करवाते हैं, एक डायलॉग बॉक्स नाम का विजेट। सो शो डायलॉग इज द क्लास ऑफ दैट, अ फंक्शन ऑफ दैट, एंड उसके अंदर हम एक विजेट रिटर्न करवाते हैं जिसका नाम है डायलॉग बॉक्स। और डायलॉग बॉक्स में कंट्रोलर वाले ऑप्शन भी छोड़ दो। उसके अंदर हमने क्या पास करा, ऑन सेव सेव न्यू टास्क करके, और इसको बनाने के लिए हमने एक प्रॉपर क्लास बना दी। तो तुम देख सकते हो कि हमारा डायलॉग बॉक्स सो या मैंने कहा कि क्रिएट न्यू टास्क पे जाओ और इसके अंदर चाहे तो मैं डायलॉग बॉक्स के अंदर ये सारा कोड डिफाइन कर सकता था।
बट मैंने क्या करा ताकि ये कोड काफी ज्यादा स्मूथ लगे, मैंने इसके अंदर सिर्फ 2 पैरामीटर्स पास किए और डायलॉग बॉक्स नाम का एक अलग से फाइल बना दी, डार्क फाइल। उसके अंदर मैंने क्या कराया, अभी डायलॉग बॉक्स के अंदर एक स्टेटस विजेट बनाया, फाइनल कंट्रोलर नाम से एक डायनामिक कंट्रोलर बना दिया। अब ये डायनामिक का यहाँ फायदा होता है, जैसे हमने थोड़ी देर पहले देखा था फाइनल बूल, फाइनल कंट्रोलर, समथिंग समथिंग, हमने यहाँ पे सिंपली फाइनल कंट्रोलर बना दिया जिसके अंदर जो प्रॉपर्टी लेनी है वो ले सके। इग्नोर दिस वॉइड कॉल बैक, ये तो मैं थोड़ी देर बाद समझाऊंगा। ये कंस्ट्रक्टर सबको समझ आता है, हमने कंस्ट्रक्टर बनाया। अब इसके अंदर ये है द अलर्ट डायलॉग बॉक्स, दिस इज द विजेट दैट इज एम्बेडेड इन द फ्लटर एसडीके। इसको यूज करके हम बना सकते हैं दिस सॉर्ट ऑफ कंटेनर्स जिसका जो शो होगा ऑन प्रेस के ऊपर। सो इसके अंदर मैंने क्या करा, उसको बैकग्राउंड कलर दे दिया येलो, और यहाँ पे जैसा कि मैंने पिछले ट्यूटोरियल में भी बताया था, साइज बॉक्स एंड कंटेनर आर रिप्लेसेबल इन सम सेंस। एक दूसरे की जगह इनको लिखा जा सकता है जनरली, बट फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस द कंटेनर इज यूज्ड, बट उसमें क्योंकि कॉम्प्लेक्शंस ज्यादा आ जाती है तो इसीलिए हम साइज बॉक्स का यूज कर सकते हैं। तो मैंने इसको कहा हाइट 120। अब यहाँ पे तुम देख सकते हो, ओके निशित, will you turn on your mic please? Yes, Ayush. So tell me हम इस चीज को create करना चाहते हैं, तो इसमें कॉलम एंड रो का कैसे इंप्लीमेंटेशन हुआ है, यहाँ पे मैंने तुम्हें जस्ट स्क्रीन पे दे दिया इस साइज बॉक्स के अंदर का कोड। जस्ट इग्नोर द कोड जो तुमने नहीं समझा, जितना तुम्हें समझ आ सकता है कि तुमने कैसे बनाया है। इसके अंदर का डायलॉग बॉक्स बनाने के लिए 2 चीज कर सकते हैं। एक तो जब नीचे आइकन्स है तो रो का यूज करके आइकन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें कि आइकन्स होते हैं अपने आप हो जाते हैं रो में। और एक मतलब ऊपर का और कॉलम का यूज ऐसे कर सकते हैं, ऊपर जो न्यू टास्क है उसको एक कॉलम में रख के और रैपिड कॉलम कर सकते हैं, और नीचे वाले के रो को एक उससे रैप कर सकते हैं ताकि ये 2 वो बन जाए। एग्जैक्टली, परफेक्ट। हाँ, तो वही हमने किया है, हमने यू कुड टर्न ऑफ योर माइक, थैंक यू वेरी मच। तो हमने यहाँ पे हाइट दे दी 120 और इसके अंदर मैंने कहा चाइल्ड एक कॉलम बना लो, तो एक पूरा कॉलम बन गया। और कॉलम के अंदर मैंने सबसे पहले ये कहा कि मैन एक्सिस अलाइनमेंट स्पेस बिटवीन। इससे क्या होगा कि मुझे यहाँ पे साइज बॉक्स नहीं डालना पड़ा स्पेसिंग के लिए, इसने ऑटोमेटिकली हैंडल कर दिया। तो अगर इसका मैं साइज ना बढ़ा के 200 भी कर दूं, सो इन दैट केस टू ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेगा खुद को उस अकॉर्डिंग से। देख रहे हो, यहाँ पे इसने खुद एडजस्ट कर लिया बिकॉज मैंने स्पेस बिटवीन करा। अब इसकी जगह तुम और प्रॉपर्टीज को भी यहाँ पे इंप्लीमेंट कर सकते हो, एंड आई हैव टोल्ड दिस इन प्रीवियस वीडियोस इनफ, राइट। सो इसके लिए हमने यहाँ मेन एक्सेस अलाइनमेंट करी और इसके अंदर मैंने कहा चिल्ड्रन, चिल्ड्रन के अंदर मैंने एक लिस्ट इंप्लीमेंट कर दी। और लिस्ट के अंदर 2 कंपोनेंट्स क्या होंगे, एक होगा जहाँ पे टास्क आएगा हमारा, और एक यहाँ पे कैंसिल और सेव की ऑप्शन आएगी। तो अगर हम इसकी बात करें तो मैंने बताया था कि तुम इस टेक्स्ट फील्ड विजेट को स्टडी करके आना। सो टेक्स्ट फील्ड विजेट क्या करता है, इट इज की यूजर से हम इनपुट ले सकते हैं इस चीज में और उसको स्टोर करके हम अपने एप्लीकेशन में थ्रू आउट द एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं। सो ये कंट्रोलर प्रॉपर्टी, इतनी देर से मैं कंट्रोलर की प्रॉपर्टी के बारे में इसलिए नहीं बता रहा था बिकॉज हियर द कंट्रोलर प्रॉपर्टी कम्स इनटू एक्शन। तो जब हम इस फील्ड से डाटा लेते हैं तो कैसे स्टोर होगा, कैसे हमें पता चलेगा कि वो डाटा क्या है। तो द कंट्रोलर विजेट्स हैज बीन दैट। कंट्रोलर प्रॉपर्टी क्या करती है, एक टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर बना लेती है जिसको हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके अपने फंक्शन में कहीं भी यूज कर सकते हैं। तो मैंने क्या करा, मैंने बोला एक कंट्रोलर बना दो, अभी इसको डायनामिक रखो क्योंकि मुझे नहीं पता क्या इनपुट आएगी। तो इसको मैं मेन फंक्शन में हैंडल कर रहा हूँ टास्क कंट्रोलर नाम से एक टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर बना के। इसको मैंने ये पैरामीटर्स पास किया। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा जहाँ पे अलर्ट डायलॉग बॉक्स है उसके अंदर ये टास्क कंट्रोलर दे दो, इसके अंदर का जो डाटा है इसके अंदर स्टोर करवा दो। अब इस डाटा को हमने बाद में लिस्ट में यूज करना है, इसीलिए हमने इसे मेन फंक्शन में इंप्लीमेंट किया, ना कि इस डायलॉग बॉक्स वाले में, राइट। अब ये तो हो गया हमारा कि टास्क कंट्रोलर बना दिया। अब यहाँ पे थोड़ी बस डेकोरेशन किया ताकि ये दिखने में अच्छा लगे, वरना डिफॉल्ट यहाँ पे कोई इसके अराउंड रेडियस नहीं होता, कोई बॉर्डर नहीं होता, ये जो चीजें हैं। सो आई जस्ट एडेड अ डेकोरेशन प्रॉपर्टी, उसमें इनपुट डेकोरेशन में जाके उसको बॉर्डर दे दिया, बॉर्डर का रेडियस जैसे मैंने तुम्हें बताया है। एंड इन फैक्ट यू नीड नॉट टू इवन लर्न द सिंटैक्स, अगर तुम यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे पता चल जाएगा कि कैसे तुम रेडियस दे सकते हो। और हिंटैक्स क्या करता है, ये बताता है कि तुम यहाँ पे क्या डाल रहे हो इनिशियली। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, यू नो, जब पासवर्ड्स बनाते हैं ना तो देयर इज दिस प्रॉपर्टी जिससे हम टेक्स्ट के अंदर ना वो हाइड कर सकते हैं डाटा, समथिंग अराउंड ऑब्सक्योर टेक्स्ट। तो अगर तुम इसको ट्रू कर देते हो ना तो जो इसके अंदर का वो है ना वो तुम्हें दिखेगा नहीं। सी, दिस इज द obscure प्रॉपर्टी। मैं अभी के लिए इसे रिमूव कर देता हूँ एंड कमिंग बैक है। तो मैंने यहाँ पे अब इसके अंदर जैसा कि उसने बताया निशित ने, हमने बनाई एक रो, और रो के अंदर फिर से मैंने मेन एक्सेस अलाइनमेंट स्पेस बिटवीन कर दी ताकि ये दोनों थोड़े थोड़े दूर दूर रहे। अब चिल्ड्रन में मैंने रो के अंदर क्या बनाया, 2 एलिवेटेड बटन्स बनाए, हम पिछली क्लास में पढ़ के आए एलिवेटेड बटन्स के 2 मेन कंपोनेंट्स क्या होते हैं, ऑन प्रेस्ड एक और चाइल्ड। चाइल्ड के अंदर मैंने सेव का आइकन दे दिया, उसके अंदर मैंने कैंसल्ड का आइकन दे दिया। अब जो कैंसिल वाला है उसके अंदर तो बहुत ईजी है, उसका ऑन प्रेस पे क्या होना चाहिए कि अगर उसने कैंसिल कर दिया तो हम नहीं चाहते कुछ भी हो, बस वो ये विंडो बंद हो जाए। तो उसके लिए फंक्शन यूज होता है navigator.pop-context, ये भी मैंने पिछली क्लास में बता दिया था कि विजेट कैसे इंप्लीमेंट होता है, राइट ना। बट अभी हमें इस पे दिमाग लगाना पड़ेगा कि हम सेव करवाना चाहते हैं टास्क को। तो हमने क्या करा, एक ऑन सेव नाम से फंक्शन बना दिया। अब जनरली क्या दिक्कत आती, अगर तुम इसी सेम फाइल में ये करते हैं, हमने तुम्हें बता दूं ये वॉइड कॉल बैक कुछ नहीं करता, ये सिर्फ एक खाली फंक्शन है जो बताता है कि अच्छा ये फंक्शन किसी और फंक्शन को रेफर कर रहा है।
वरना तुम्हें इस फंक्शन को डिफाइन करना पड़ता, इसके कंपोनेंट्स को डिफाइन करना पड़ता। बट हमारा जो मेन कोड है वो तो होम के अंदर चल रहा है, ये तो हमने सिर्फ यूटिल्स फाइल बनाई। तो अगर दिक्कत ये आती है, अगर हम वॉइड कॉल बैक की जगह एक प्रॉपर फंक्शन बनाते तो वो मेन में इंप्लीमेंट करने में दिक्कत हो जाती। इसलिए हमने इसे क्या करा कि बस एक ऑन सेव नाम का खाली फंक्शन बना दो, उसको हम यूजर से ले लेंगे, अभी हमें उसकी जरूरत नहीं है, खाली रहने दो इसको। तो हमने खाली छोड़ दिया, इसके अंदर है डायलॉग बॉक्स के अंदर। अब हमें क्या दो प्रॉपर्टीज चाहिए इसके थ्रू, हमें चाहिए कि टेक्स्ट कंट्रोलर में डाटा चले जाए जो जो इसके अंदर अलर्ट डायलॉग बॉक्स के अंदर जा रहा है, और ऑन सेव पे कोई सेव न्यू टास्क नाम का फंक्शन रन हो जाए। तो अपना सेव न्यू टास्क देख लेते हैं। तो सेव न्यू टास्क के अंदर हमने क्या करा, हमने करा कि सेट स्टेट कर दो, टू डू लिस्ट के अंदर जाओ और उसमें ये इंडेक्स पे जाओ, ये डाटा की वैल्यूज लो। ये एक फंक्शन है ऐड का जिसके अंदर पैरामीटर्स जाते हैं वैल्यू। वैल्यू के अंदर हमने दो चीजें पास करनी है क्योंकि हमारी एक लिस्ट है। पहली क्या है, टेक्स्ट कंट्रोलर का टेक्स्ट, उसके अंदर जाएगा ये वाला फंक्शन की कौन सा टेक्स्ट जा रहा है, और क्योंकि डिफॉल्ट फॉल्स रखते हैं तो हम इसको हार्डकोर दे सकते हैं। उसके बाद हमने क्लियर क्यों करा इसे, क्योंकि जब हम अगली बार कोड रन करेंगे ना तो फिर वो फिर से वही वैल्यू उठा लेगा जो पुरानी टेक्स्ट में डाटा पड़ा था। इसलिए हम उसको क्लियर कर देते हैं कि भाई अब तेरा काम खत्म हो गया, चलेगा। सो अगर हम इतना कर लेते हैं तो हम इसके अंदर कुछ भी डालेंगे और सेव फंक्शन करेंगे तो ये टास्क हमारा चल जाएगा, हमारा फंक्शन सेव हो जाएगा। अब बताओ यहाँ तक चीजें मेक सेंस कर रही है, कुछ टफ या फिर बोरिंग तो नहीं लग रहा, या फिर काफी ज्यादा लेवल इंक्रीज तो नहीं हुआ एकदम से, बिकॉज ये सारी चीजें हम पिछले प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। जस्ट एक प्रॉपर एप्लीकेशन में हम इसका ब्रीफ ले रहे हैं। सो टेल मी हाउ आर द थिंग्स गोइंग सो फार। अदर्स बाकी हाँ एग्जैक्टली, योर क्वेश्चन इज वेरी मच एप्ट तनु। हम कोई प्रेडिक्शन नहीं करते, इसीलिए मैंने तुम्हें सारे फंक्शंस उस ऑर्डर में बताए जिस ऑर्डर में मैंने एप्लीकेशन खुद बनाई है। क्योंकि जब तुम एप्लीकेशन को स्टार्ट करते हो तो तुम्हें कोई आइडिया नहीं होता कि तुम इतने सारे फंक्शन देखते हो। तो अगर मैं तुम्हें ऊपर से कोड का ब्रेकडाउन समझाने लगता था तो तुम्हें समझ नहीं आता। बेसिकली व्हाट वी डू इज हिट एंड ट्राई, एटलीस्ट इन अ सिंपल वर्ड्स आई कैन से दिस। तो अब हमें चाहिए था कि टू डू लिस्ट के अंदर होता क्या है, टास्क होते हैं, तो उसके लिए हमने एक टाइल बना दी। अब टाइल को हम बार बार इंप्लीमेंट नहीं करना चाहते तो हमने एक यूटिल्स फोल्डर में एक पूरा बना दिया जिसके अंदर मल्टीपल टाइल्स होते हैं। अब हम देखते हैं कि अच्छा हम इस फंक्शन को टिक करवाना चाहते हैं तो उसके लिए एक फंक्शन बनाना पड़ेगा जो ऑन प्रेस बता दे कि क्या, जहां जहां पे ऑन प्रेस इंप्लीमेंट हो रहा है वहां पे फंक्शन क्रिएट होगा। दैट इज वेरी मच ट्रू अबाउट दिस थिंग। तो हमने देखा कि अच्छा यहाँ पे एक चेक बॉक्स के लिए एक फंक्शन लगेगा, और जब ये वाला बटन प्रेस हो रहा है तो उसके लिए एक फंक्शन लगेगा, ये वाला बटन प्रेस हो रहा है तो उसके लिए एक फंक्शन लगेगा, जब हम टास्क सेव कर रहे हैं तो उसके लिए फंक्शन लगेगा। सो इस तरह से ये कोड स्ट्रक्चर होता है, उस तरह से कोड स्ट्रक्चर होता है, एंड दैट इज व्हाई फंक्शंस कीप ऑन एडिंग। एंड अगर तुम मेरा गिटहब के ऊपर जाके कोड देखोगे देन यू विल सी अ सॉर्ट ऑफ स्ट्रक्चर कि कौन सा कंपोनेंट पहले आया, कौन सा कंपोनेंट बाद में आया। सो ये जो जितने फंक्शंस तुम देख रहे हो दीस आर ऑल एडेड लेटर ऑन अकॉर्डिंग टू द कन्वीनियंस। एंड इसीलिए मैं कहता हूं ट्राई क्रिएटिंग एवरीथिंग फ्रॉम स्क्रैच फ्रॉम योर ओन एंड विदाउट एनी रेफरेंस, क्योंकि उसमें ही तुम्हें समझ आएगा एरर से डील करने के बाद कि अच्छा यहाँ पे ये वाला फंक्शन चाहिए था, यहाँ पे वो वाला फंक्शन चाहिए था। एंड इनफैक्ट अब मैं जब तुम्हें अगली असाइनमेंट दूंगा मैं तुम्हें पूछूंगा कि यहाँ पे कौन कौन से कंपोनेंट्स यूज हो सकते हैं। सो जस्ट यू कुड गेट अ ब्रीफ अबाउट दिस, राइट। सो अब मुझे बताओ कि जैसे फंक्शंस पे बात चल रही है कि अब हमारा बेसिक टू डू लिस्ट तैयार होगी जो टास्क को ऐड कर सकती है, बट हम टास्क को डिलीट करना चाहते हैं। तो लग गया पता कि हमने टास्क डिलीट करना है तो उसमें फिर से हमें कुछ प्रेस करना पड़ेगा, इसीलिए एक और फंक्शन की रिक्वायरमेंट होगी। अब उस फंक्शन को कैसे इंप्लीमेंट करें, या तो हम यहाँ पे क्रॉस का बटन बना दें कि क्रॉस करो और फंक्शन को इंप्लीमेंट कर दो। बट जैसा कि मैंने कहा कि जो पब स्पेक में डिपेंडेंसीज होती हैं वो बहुत ज्यादा यूजफुल होती हैं इस केस में, फ्लटर के केस में। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ टू डू लिस्ट में आया, मैंने एक डिपेंडेंसी यूज किया जिसका नाम है स्लाइडेबल। और अगर तुम स्लाइडेबल को इंपोर्ट करना चाहते हो जस्ट ऐड पब स्पेक में जाओ, फ्लटर स्लाइडेबल सर्च करो, पहली एक्सटेंशन तुम्हें मिलेगी उसे इंस्टॉल कर लो। तो हमने क्या करा, हम अपने इस कोड के अंदर आए और हमने इस कंटेनर को रैप करके स्लाइडेबल के साथ। अब स्लाइडेबल में क्या प्रॉपर्टीज होती है, सबसे मेन पहली प्रॉपर्टी होती है एंड एक्शन पेन और एक होती है स्टार्ट एक्शन पेन। अब मुझे पता है कि तुम्हें कुछ अभी समझ नहीं आ रहा होगा कि स्लाइडेबल करता क्या है, तो मैं पहले तुम्हें दिखा देता हूँ ये करेगा क्या। स्लाइडेबल एज द नेम सजेस्ट कुछ स्लाइड से रिलेटेड होगा, और जैसे कि मैंने इसे रैप किया है कंटेनर के अंदर तो मतलब ये कंटेनर को किसी सॉर्ट ऑफ वे में स्लाइडेबल बना देगा। एंड यस, जैसे तुम इसको ऐसे करोगे तो देख रहे हो तुम ये स्लाइड हो रहा है। अब अगर मैं इस डायरेक्शन में करने की कोशिश करूं तो इस डायरेक्शन में नहीं होगा, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ दिस एंड एक्शन पेन। अगर मैं स्टार्ट एक्शन पेन डालता ना तो इस साइड को स्लाइड होना था इसने, और इसके अंदर मैंने मोशन बताया कि अच्छा क्या कर दो इसको, वो क्या कर दो, ये तुम और प्रॉपर्टी स्टडी कर सकते हो। बट बेसिकली हमने इसे क्यों ऐड किया, हम नहीं चाहते यहाँ पे कोई क्रॉस वगैरह डाले जिसको दबा के हम अपने फंक्शन को डिलीट कर सकते हैं। दैट इज अनदर अप्रोच टू। बट मैंने क्या किया, मैंने कहा कि इसको स्लाइड करो और यहाँ पे मुझे डिलीट का बटन दे दो। अब बात फिर आ गई कि जब कहीं पे भी बटन प्रेस होगा तो फिर से फंक्शन क्रिएट होगा, और यहाँ पे स्लाइडेबल का बेनिफिट आ जाता है। स्लाइडेबल के अंदर ये प्रॉपर लिस्ट पड़ी होती है जिसके अंदर स्लाइडेबल एक्शन नाम से कि स्लाइड जब हम करें तो क्या एक्शन परफॉर्म हो। एंड हमने यहाँ पे कहा कि ऑन प्रेस
डिलीट कर दो, एक डिलीट फंक्शन बना लिया हमने, उसको आइकन दे दिया डिलीट और उसको ब्लैक कलर दे दिया। तो डिलीट फंक्शन पे चलते हैं। तो डिलीट फंक्शन पे भी मैंने क्या करा, यहाँ पे एक फंक्शन बना लिया और कहा कि ये नल तो नहीं होगा, बट मैं उसको यहाँ डिफाइन नहीं करूंगा, बजाय कि इसको मैं अपनी मेन फाइल में डिफाइन करूंगा। तो मैं अपनी मेन फाइल में फिर आया और मैंने कहा कि अच्छा अब 3 चीजें थी, तो मुझे टू डू लिस्ट में एक और कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा और डिलीट फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा यहाँ पे, और यूजर से इसे भी मांगना पड़ेगा कि डिलीट करने पर क्या कर लो। तो डिलीट फंक्शन को हमने कहा कि इसको कंटेक्स्ट दे दिया कि अच्छा तुमने बिल्ड कंटेक्स्ट वाली फाइल में जाना है और उसमें डिलीट टास्क कर देना है, कहाँ पे, जहाँ पे इंडेक्स का है यूजर। तो अब डिलीट टास्क में आ जाते हैं। डिलीट टास्क में बिल्कुल सिंपल कोड है एक लाइन का, टू डू लिस्ट में जाओ रिमूव कर दो जहाँ पे इंडेक्स लिखा है। तो अब इस केस में ये देखो हमने कुछ ये डाल रखा है, इसको मैं जैसे डिलीट दबाऊंगा ये डिलीट हो गया। एंड दैट इज हाउ योर बेसिक टू डू लिस्ट वर्क्स। अब यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, अब समझ आया तो दैट हाउ वी नो दैट फंक्शंस कैसे वर्क करेंगे, राइट? ओके, बाकी रिस्पॉन्ड आर द थिंग्स क्लियर? Because this to-do list was sort of a mid level of code, क्योंकि इसमें हमने मल्टीपल चीजें इंप्लीमेंट की, so maybe there could be some things जिसे समझने में तुम्हें टाइम लगे, and in fact I suggest कि तुम इस वाले कोड को भी मैंने GitHub पे ऑलरेडी डाल रखा है और असाइनमेंट में इसका लिंक भी डाल रखा है, स्टडी दिस कोड एंड ट्राई टू क्रिएट दिस होल थिंग बाय योर ओन, और इससे तुम्हें और चीजें पता चलेगी। दैट्स वेरी ग्रेट निशित, ग्रेट। सो अब हमने टू डू लिस्ट बना ली, अब हम चलते हैं अपने एक और इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट के ऊपर, which is going to be the truth and dare application। एंड उसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट क्या होता है टू डू लिस्ट। अच्छा तनु, would you turn on your mic? Yeah, hi. So tell me, एक टू डू लिस्ट के अंदर क्या कंपोनेंट्स हो सकते हैं स्पेसिफिकली, लाइक मतलब जस्ट टेक अ वाइल्ड गेस। टू डू लिस्ट में हमारा टास्क होगा, नॉट टू डू लिस्ट, सॉरी, ट्रूथ एंड डेयर गेम। लाइक सपोज ट्रूथ एंड डेयर में क्या होता है कंपोनेंट्स? क्वेश्चंस होंगे। हाँ, क्वेश्चंस होंगे, एंड वो क्वेश्चंस कोई स्पेसिफिक ऑर्डर में नहीं होंगे, राइट? या कोई भी क्वेश्चन हमारे पास नीड बी चूजिंग की ट्रूथ दिया है या डेयर दिया है। हाँ, बस यही मेन कंपोनेंट्स होते हैं इसके ट्रूथ एंड डेयर गेम के। तो उसके लिए अब हमें पता चल गया कि हमें रैंडम क्वेश्चन इंप्लीमेंट करना है, बट हमें पता नहीं अभी तक कि रैंडम फंक्शन बनता कैसे है। तो मैं तुम्हें थोड़ा सा ना डार्ट के बारे में ले जाना चाहता हूँ, डार्ट के बेसिक्स। यहाँ पे कोई पाइथन का कोडर है, अगर कोई है तो उसे आइडिया होगा रैंडम फंक्शन के बारे में। किसी ने पढ़ा है रैंडम फंक्शन इन पाइथन? ओके ओके ग्रेट। हाँ, तो फिर जैसे रैंडम फंक्शन पाइथन में वर्क करता है, इन द सेम वे इट वर्क्स इन द डार्ट इटसेल्फ। सो अगर मैं अपने डार्ट पैड के अंदर आऊँ, ये डार्ट पैड ऑनलाइन कंपाइलर है फॉर जस्ट डार्ट के फंक्शंस। तो यहाँ पे तुम अगर डार्ट को प्रैक्टिस करना चाहते हो कुछ उसके कंपोनेंट्स को, यू कुड स्टडी है। एंड द इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट इट इज, अगर तुम किसी भी विजेट पे क्लिक करते हो, दिस गिव्स द डॉक्यूमेंटेशन कि इस फंक्शन का नाम क्या है। तो जैसे कि तुम रैंडम के लिए देख सकते हो, क्रिएट अ रैंडम नंबर जनरेटर, और वही हमें चाहिए कि हमें एक रैंडम नंबर जनरेट हो जाए, बट अब उस नंबर को अपनी लिस्ट में कन्वर्ट करें कैसे? तो पहले सबसे पहले तो इंपोर्ट मैथ लाइब्रेरी कर लेते हैं जहाँ पे रैंडम फंक्शन प्रेजेंट है, और वैर रेंज नाम का एक मैंने वेरिएबल दे दिया कि इस रेंज में रैंडम फंक्शन इंपोर्ट करना है। वो रेंज क्या होगी हम बाद में डिफाइन करेंगे। हमने एक लिस्ट बनाई और इसमें मैंने 4 क्वेश्चन डाल रखे हैं ऐसे ट्रूथ एंड डेयर गेम के जो होते हैं, और मैंने कहा कि इस लिस्ट को प्रिंट कर दो। लिस्ट के कौन से इंडेक्स को प्रिंट करो? रेंज नेक्स्ट इंट। ये रेंज नेक्स्ट इंट क्या करेगी? ये बताएगी कि अच्छा इस रेंज में इंट में कन्वर्ट करके प्रिंट करना, और वो रेंज क्या है? लिस्ट डॉट लेंथ। इसकी लेंथ कितनी है? 4। तो बेसिकली क्या हो रहा है, अगर हम बाहर निकले कि 4 लेंथ होगी लिस्ट की, उसके अंदर रेंज मतलब 4 दे दी, इसको 4 असाइन हो गया। तो रैंडम फंक्शन को क्या कहा हमने कि 4 की रेंज में प्रिंट कर दो लिस्ट का इंडेक्स कोई भी रैंडम नंबर के साथ। तो इसमें क्या होगा, लिस्ट 0 जाएगी, कभी लिस्ट 0 इंडेक्स आएगा, लिस्ट 1 इंडेक्स आएगा, लिस्ट 3 इंडेक्स आएगा, वो अपनी मर्जी से। तो अगर हम इसको रन करें तो ये हर बार एक रैंडम नंबर को इंपोर्ट कर देगा, एंड ये हमारा बिल्कुल बेस बन गया हमारा ट्रूथ एंड डेयर एप्लीकेशन का। तो हमने जैसा कि मैंने बताया कि ट्रूथ एंड डेयर एप्लीकेशन का मेन कंपोनेंट ये होता है। और दूसरा कंपोनेंट क्या होगा? दूसरा कंपोनेंट ये होगा कि किसी ने टास्क कंप्लीट किया तो ऑन कंप्लीटेड क्या होना चाहिए, तो वो एक फंक्शन बनेगा। टास्क कंप्लीट नहीं हुआ तो एक फॉरवर्ड फंक्शन बनना चाहिए। और यहाँ पे एक कार्ड्स, तुम अगर स्टडी करोगे, अब नेक्स्ट असाइनमेंट यही है तुम्हारी, लाइक ऑफ कोर्स आई डू नॉट एक्सपेक्ट यू टू फिनिश विद इन अ डे ऑफ कोर्स, बट आई वांट कि जो अभी तक जिन्होंने टू डू लिस्ट वाली असाइनमेंट नहीं सबमिट की वो ये करें, एंड द डेडलाइन फॉर दिस असाइनमेंट वुड बी मंडे होपफुली, बिकॉज इसका जो मेन कंपोनेंट है वो मैं तुम्हें ऑलरेडी बता चुका हूँ। मंडे को हमारी मीटिंग होती है जो मैडॉक में, वी विल डिस्कस अबाउट इट, और किसी को कोई भी एरर आ रहे होंगे वहां पे अगर हम सॉर्ट ऑफ एक छोटी सी डिस्कशन कर सकते हैं इसके बारे में। इज दैट गुड विद यू? कर लोगे मंडे तक सब? ओके ग्रेट। सो Shreya, would you like to try the UI UX breakdown of this? As per my knowledge, you are into UI UX, right? Yeah. So just try to do it from the perspective of Flutter. So in that case, क्या क्या components हो सकते हैं इसमें?
Can you come again? I was saying कि इसका यूनिवर्स ब्रेकडाउन करना सॉर्ट ऑफ, बट इन द कंटेक्स्ट ऑफ ट्विटर, लाइक कि जैसे एपार होता है, कार्ड्स होते हैं, ऐसे. So you want me to go through the code or something like that? नॉट द कोड, बट जस्ट कि मतलब ये कैसे बनना होगा, मतलब द माइंडसेट बिहाइंड क्रिएटिंग दिस. अगर हमें क्रिएट करना है तो क्या प्रोसेस होगा हमारे माइंड में कि हम ऐसे इसको क्रिएट कर सकते हैं. Like we can use the cards structure which we use for Tinder cards when we did that. Yeah. And then we can use the elevated buttons widget. Also, the first we got the increment code, right? Like when we first opened the increment counter part, so we can use that as well. Okay. That sort of makes sense, but okay, thank you. I will. So basically, all we will be doing here is, ये तुम ऊपर देख रहे हो सब. This is going to be the app bar. और इसमें क्या components है? First one being कि मतलब तुम इस application से बाहर आना चाहते हो, and second being यहाँ पे तुम counter लगा सकते हो कि game जो जीत रहा है, हाँ, icons and the text, right. तो यहाँ पे तुम कंपोनेंट लगा सकते हो कि गेम पॉइंट हो गया या फिर कुछ और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे रैंडम फंक्शन और कार्ड्स का गेम है. कार्ड्स मैंने तुम्हें अभी तक पढ़ाई नहीं, एंड दैट ऑफ कोर्स इज गोइंग टू बी योर असाइनमेंट. हम कार्ड्स को स्टडी करेंगे कि कार्ड्स कैसे वर्क कर सकते हैं, एंड इट इज स्पेसिफिकली जस्ट लाइक कंटेनर्स. जैसे कंटेनर वर्क करता है वैसे कार्ड्स वर्क करते हैं इन सम सेंस. जो डिफरेंसेस हैं व्हेन यू स्टडी यू विल गेट फैमिलियर टू दोस. और यहाँ पे स्वाइपेबल, जैसे कि श्रेया ने बताया, हम उसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं स्वाइपेबल कार्ड्स को, कि तुम बार बार इसको स्वाइप करो तो अगला टास्क आ जाए, अगला वो आ जाए. और उस टास्क को हैंडल करने के लिए हमने एक रैंडम फंक्शन बना दिया. अब नीचे यहाँ पे कंप्लीटेड है, एक फॉरफिट है. तो अगर टास्क कंप्लीट हो गया तो यहाँ पे जो स्कोर है वो इंक्रीमेंट कर दो इंक्रीमेंट फंक्शन के साथ, और टास्क कंप्लीट नहीं हुआ तो फॉरफिट के साथ फॉरफिट कर दो. तो ये बिल्कुल बेसिक एप्लीकेशन तुम्हारी रेडी हो जाएगी. इसमें कार्ड्स लगेंगे, एप बार लगेगा, 2 एलिवेटेड बटन लगेंगे और फंक्शंस लगेंगे 4. अब तुम्हें आइडिया हो गया होगा तनु, राइट, कि कैसे हम फंक्शंस को यूज करते हैं. कि हमें पहले थोड़ा आइडिया लगाना पड़ता है कि अच्छा यहाँ एक फंक्शन लगेगा, वहाँ एक फंक्शन लगेगा, एंड दैट इज हाउ यू कुड बिल्ड योर ट्रूथ एंड डेयर एप्लीकेशन, a simple application. And this will give you familiarity about more related कि कैसे इंक्रीमेंट फंक्शन, सेट स्टेट कैसे करना है, एलिवेटेड बटन के अंदर फंक्शंस कैसे डालने हैं, राइट. होप द थिंग्स आर क्लियर. Just let me know if you have any problems or any issues that you are facing in your Flutter development or the bootcamp too. Otherwise, everyone just drop a thumbs up if the things are going well. Others too, just let me know. जितने 6 बंदे इस मीटिंग में सब. हाँ, okay. Great. So that is pretty much it about today's lecture. अब अगले बार जब हम कल ही मिलेंगे, ऑफ कोर्स, तो हम कार्ड्स को स्टडी कर लेंगे. हम ये सारे कंपोनेंट्स को स्टडी करके बिल्कुल छोटा सा मैं तुम्हें बना दूंगा एप्लीकेशन दिस ट्रूथ एंड डेयर. एंड दैट इज व्हाई आई एक्सपेक्ट यू कि तुम मंडे तक इस असाइनमेंट को खुद से ट्राई करके कंप्लीट करो, राइट. एंड द प्रीवियस वन टू, जो तुम मिस कर चुके हो जो लोग भी. And thank you very much for joining. If you do not have any issues or error, you may stay. Otherwise, you can leave this meeting. Thank you. Have a great night.